Hey guys, now we have today with us Raj Gopal sir, who works with Kitply. He is a VP of Sales for South India in Kitply. Hey sir, Hi. so can you give a brief introduction about yourself? Yeah, Nikhil. I started, my first job is in plywood only. This is my first company and I wanted to be the last 31 years My God, okay. working with this same company. Okay. See, actually, initially I was not very comfortable. See, like Kitply, that was a very familiar brand. Wherever you go, people are not very, Acha, I know Kitply. So I was finding it difficult whether I'll be able to, because I don't have any role to play. So luckily my company people gave me like additional responsibility, made me sent to a different brand. So I have an independent. So there was no looking back. Wow. So really, it was really when 31 you years. put your heart into something, it is, so that is like, so you don't have to look back, it is. And luckily the management, my management, they were like really, they are good, it is. And they accommodated me. Sometimes, yeah, definitely we used to have issues. But it is when you are right, it is, so ultimately everything will come into Correct. this thing, it is. So 31 years you've just been in the plywood industry? Yeah, one company, that is Kitply. So I mean, if I ask you, अंदाज से 31 years में कितने projects को आपने deliver किया होगा plywood? I can't even imagine. I worked in different branches. Bombay में था. Then I went to Nasik. From there we went to Punjab. Almost 7 years I worked in Punjab. Came back to Pune. Okay. 2 years. Bangalore from 2002 onwards it is. Okay. So I made my home Bangalore it is. So I don't want to. Okay. This thing it is. It was a dream destination when I was small. That I wanted to like Bangalore. So ultimately I come to, thanks to my company, they put me into Bangalore. Okay. So now I handle the entire south. Okay. Like you can say Chennai, Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, Goa, and up to Andaman, Port Blair I used to. So how old is the company Kitply? Let's see, we have started in 1982. Oh. 82. And earlier we used to make like, it is not plywood, see, it's not, we used to make tea boxes you must have seen. Tea battens we used to manufacture. That was a small unit, that was one in like Pathankot, one was in like Amravati near Nagpur. Okay. So we used to, like in northeast. So we used to supply that. Later on our chairman, like SP Goenka, he come out with the idea of making plywood it is. It is almost the same process, teachers pattern, like you must have seen the boxes, na? So we used to supply to, like that time, Hindustan, like liver and all that it is, these people it is. Then later on we have come out with plywood. Okay. So in a small way, like Sudarshan timber, then Sudarshan plywood. Then later on, see, I'll tell you, we were the first to introduce waterproof plywood In India? in India. Oh. Kitply. Like Kitply, that is like abbreviation again, say KIT, kitchen. So we used to say kitchen ply. Okay. It has later on it's become Kitply. We were like company name was Sudarshan Plywood and it was Kitply become so famous, even we have changed our name to Kitply Industries Limited. And the most advantage is that is once actually, see, people used to only non-waterproof plywood, commercial plywood. After some time, it get peeled off. So you have to do everything it is. So later on, we started using like kitchen, where there is already chance of getting on contact with water it is. So Okay. we are suggested. So for my viewers who don't know, what exactly is plywood? Yeah, I'll tell you plywood it is. See, earlier there was no plywood, it is only timber it is. Okay. Disadvantage is that you have to cut a timber. You have to cut the tree, basically. Tree. That is anyway, for plywood also you have to do. But okay, I'll come to that it is. Timber. But the timber is that it is to make a furniture, you have to have a certain kind of timber, like in the sense of एक shape में रहना shape में रहना चाहिए. Suppose 8 feet length and 1.5 inches. So that one advantage is that it is plywood, you will get in large panels. See, tree may be, suppose the girth may be 1 meter. What is the size of width of plywood you are going to get it is, or like timber you are going to get it. Whereas in plywood, up to 4 feet width you will get it is. इसके अंदर क्या ना plywood में it's something like it's like wood and what is the advantage? Plywood में क्या होता है timber में? Timber ये कोई particular timber है. This is poplar wood. It is that normally very popular in North India. It is. Here it is all this grain direction. One direction only it is. Okay. And it is like, suppose if it is okay, this is almost 16 mm, you can't break it. Suppose if it is 12 mm or 10 mm, you can easily break it. Oh. Whereas in plywood, there is it is also made of wood only, but there is a process. Okay.
ये क्या दिखा रहे हैं ये है वीनियर है इसके प्लाईवुड से टिम्बर से अच्छा वी पील द दिस थिंग इट इज एंड टेक आउट द वीनियर्स इट लाइक काकड़ी से जो निकल नहीं वो नहीं है वो ऐसा नहीं आप सपोज आई टेल यू समथिंग लाइक दिस इज a wood. Oh. You using a blade, you are going to peel it off. Like this. This way you will get it as. Oh. And then you cut into required sizes it is. Oh. There are plywood available in 8 feet by that is the biggest size so far. Okay. There are other sizes are available but very rarely. This can be cut into pieces. Required sizes it is. Okay. Then again this is the face veneer it is. Okay. There is a construction size on. This is a face veneer. Above that is this is called the face line core. Then the next this thing will be like even the face line will be like suppose this is a long direction. The immediate core will be across 90 degrees. 90 degrees. Then again it will be like it will be this way. So दोनों तरफ से strength मिलता है. Actually इसका क्रॉस स्ट्रक्चर है उसके वजह से एक ही डायरेक्शन में जैसे आपको टिम्बर में मैंने बोला इट इज रनिंग इन वन डायरेक्शन. Correct. Whereas प्लाईवुड में ऐसा कि देखो आपको मैंने 4 कोर है चारों का डायरेक्शन अलग है तो यू कैन ब्रेक इट. सपोज इफ 12 mm टिम्बर आपको ब्रेक कर सकता है लेकिन आप 6 mm प्लाईवुड आप ब्रेक नहीं कर सकता. ओके इट इज उसका स्ट्रेंथ भी बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ द क्रॉस स्ट्रक्चर. हाँ इसका ग्लू के बारे में आई कम व्हेन इट कम टू ग्रेड आई टेल यू बिकॉज इट्स नॉट ओनली टिम्बर के अलावा उसके अंदर ग्लू रहता है उसके अंदर जो वो ग्लू उसके पेस्ट करना पड़ता है उसके अंदर वो आएगा बिकॉज अलग अलग डिपेंड्स अबाउट द ग्लू अलग अलग वेराइटीज आ जाए तो कम इनटू दैट इट. दिस इज बिकॉज दिस इज द एडवांटेज एंड इसके अंदर क्या ना आपका जैसा 4 फीट पैनल है नहीं तो नॉर्मली क्या टिम्बर में आप कितना भी बड़ा वुड लकड़ी काटेगा तो अभी आप उसको शो करने के बाद में आपको इसका एक लिमिटेशन है. हाँ हो सकता है 3 फीट मिलेगा नहीं तो 2 फीट मिलेगा. तो आजकल कहाँ है टिम्बर कहाँ पे उसके अंदर ऑलरेडी इट इज सब खत्म कर दिया तो ये नहीं होता उसके अंदर. इसके लिए प्लाईवुड में क्या आपको लार्ज पैनल्स मिलेगा उसके अंदर 4 फीट बाई 8 फीट. हाँ तो आप बाहर से आप देखने से आपको कुछ भी नहीं पता लगेगा. दिस विल बी कवर्ड विद अ फेस एंड देयर विल बी लाइक wood this thing it is core inside it is so this can be and it is will give you a smooth surface whereas लकड़ी में क्या होता है आप करने के बाद में कारपेंटर प्लेन करते करते फिर देखेंगे उसको प्लेन करेंगे तो बहुत ये प्रोसेस है उसके अंदर. हाँ टिम्बर एक एस्थेटिक पर्पस के लिए कुछ जगह जैसा टीक है कहीं डेकोरेशन के लिए वहाँ पे आप दे सकते हैं जैसा बिल्डिंग में है. बाकी ऑलमोस्ट सारा यूसेज तो आज इसमें हाँ ठीक है कोई अफोर्ड कर सकता है टीक में एंटायर तो कर सकता है. देयर आर लिमिटेशन यू हैव टू पुट जॉइंट्स देना पड़ता है उसके अंदर उसमें अगर प्रॉपर सीसन्ड वुड नहीं है तो जॉइंट्स में है क्या उसका वेरिएशन आ जाएगा उसके अंदर. ये एक एडवांटेज है उसके अंदर प्लाईवुड के विल गेट इन लार्ज पैनल्स. स्ट्रेंथ इज मोर देन टिम्बर. मैं आपको बोला ना जैसा 12 mm टिम्बर यूज करने से अब 6 mm प्लाईवुड भी नहीं तो 9 mm प्लाईवुड आप यूज कर सकता है उसके अंदर. उसका स्ट्रेंथ इज मोर देन उसके अंदर उसमें. सो प्लाईवुड यू टोल्ड व्हाट इट इज एंड हाउ इट्स मेड. अब मेरे को ये बोलिए लाइक जनरली डे टू डे यूज में आपने तो एक दो एडवांटेजेस बोल दिए कि क्रॉस सेक्शन क्रिएट हो जाता है 90 डिग्री लाइक इट हैज अ लॉट मोर स्ट्रेंथ देन नॉर्मल टिम्बर. बट व्हाट आर सम अदर एडवांटेजेस एंड लाइक एनी इफ देयर इज एनी डिसएडवांटेजेस अबाउट प्लाईवुड जब डे टू डे यूज करते हैं प्लाईवुड में कारपेंटर्स के लिए मेरे हिसाब से कोई डिसएडवांटेजेस तो नहीं. एक ही इश्यू था प्लाईवुड का प्रमोट करने से डिफोरेस्टेशन का इश्यू सारा वी एड्रेस दैट इट इज क्योंकि आपको कटिंग करना टिम्बर कटिंग करने बिना नहीं होगा. हम लोग ये स्टार्टेड एग्रो फॉरेस्ट्री तो ये एक एडवांटेज ऐसा है ना. पहले क्या था 30 इयर्स 40 इयर्स के बाद में टिम्बर कट करके यूज़ करता है. ये जो पॉपुलर है मेरे हिसाब से इसका लाइफ होना चाहिए एक 5 इयर्स 6 इयर्स का मतलब उसका जितना 5 साल 6 साल के बाद में आप उसको कट करके बना सकते हैं उसके अंदर प्लाईवुड बना सकते हैं. तो आप इतना लॉन्ग प्रोसेस जैसे साउथ में अवेलेबल है सिल्वर वुड इसके अंदर क्या ना अराउंड मैक्सिमम 12 to 15 ईयर्स में आप उसको लकड़ी काट के आप उसको कर सकते हैं. आप उसको नेक्स्ट सेट ऑफ आप ये कट करते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ आप उसको प्लांटेशन कर देते हैं उसके अंदर में. अच्छा. तो ये उसको बाकी डिसएडवांटेजेस मेरे हिसाब से इतना नहीं है उसका विजिबल कोई. एडवांटेज तो आपको है स्ट्रेंथ मिलेगा लार्ज पैनल्स मिलेगा इजी टू आपका जो है कारपेंटर को दिया 2 बेडरूम का 15 डेज के अंदर फर्नीचर सारा रेडी करके आपको दे देगा उसके. आप लकड़ी कारपेंटर को दे देंगे उसको रिसाइज करना ये करना वो पॉसिबल ही नहीं है आजकल इसलिए कोई करता भी नहीं है उसके अंदर. हाँ जहाँ पे वो रिक्वायर्ड है जहाँ कुछ रिकॉर्डेटिव है वहाँ पे यूज कर सकता है उसमें. वैसा तो कोई डिसएडवांटेजेस मेरे हिसाब से नहीं है उसके अंदर उसमें. बाकी प्लस पॉइंट्स ही है उसके माइनस पॉइंट्स नहीं है उसके अंदर. सो आजकल पार्टिकल बोर्ड MDF इंजीनियर्ड वुड ये सब बहुत फेमस हो गया. आई मीन हाउ डज प्लाईवुड कंपेयर विद ऑल दिस. तो ये कंसेप्ट वैसा आ गया जैसा प्लाईवुड में आपको पूरा ट्री कट करके लाना चाहिए. पार्टिकल बोर्ड में ऐसा है सिर्फ ब्रांचेस को कटिंग करके
उसको आपको उसको क्रश करके स्मॉल पार्टिकल्स बना के, पल्प नहीं, पल्प सेपरेट हो गया, अच्छा MDF टाइप में पल्प बना, इसके अंदर फाइन पार्टिकल्स आप बना देते हैं उसके अंदर, ओके उसके अंदर वो ग्लू से मिक्स करके उसको कंप्रेस कर देते हैं उसके अंदर। तो जैसा ब्लू मिक्स करने से शायद 24 इंचेस सेंटीमीटर होगा, उसका करके 12 mm बना देगा, उसके अंदर कंप्रेस स्टेज में आ जाता है। करेक्ट लेकिन उसका डिसएडवांटेज ऐसा है कि वहाँ पे प्लाईवुड में ऐसा कि एक्चुअली इट्स एज गुड एज लाइक लकड़ी है उसके अंदर इसमें। यहाँ पे इसके अंदर के पार्टिकल बोर्ड के अंदर देखिए अभी टेक्नोलॉजी हो गया, जैसे पहले क्या था, लोग कारपेंटर का स्क्रू कर लेता था, स्क्रू विल नॉट, स्क्रू होल्डिंग स्ट्रेंथ नहीं हो, कम आउट विल कम आउट इट इज। तो ये इसकी वजह से, बाकी आज देखिए पार्टिकल बोर्ड में देखिए पहले क्या था, उसमें भी डिफरेंट वेराइटीज है, इंटीरियर ग्रेड है, एक्सटीरियर ग्रेड है। देखिए वहाँ पे भी ऐसा कि देखिए एक तो होता है कॉस्ट कटिंग करने के लिए आपका, जैसा पार्टिकल बोर्ड में ठीक है आपको पहले करके उसको बाद में लैमिनेट करना पड़ता है, ये प्री लैमिनेटेड आता है, आजकल प्लाईवुड में भी आता है, ये सब एडवांटेज है। लेकिन उसमें डिसएडवांटेज भी है पार्टिकल बोर्ड की, ऐसा कि एक तो अभी रिसेंटली पार्टिकल बोर्ड को याद में MDF, मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड, लाइक HDFE हाई डेंसिटी, इसमें ये सब आ गया। हाँ, तो ये भी दे आर आल्सो ट्राइंग टू इम्प्रूव। उसमें अंदर जो MDF का लिमिटेशन किया था, अगर ह्यूमिडिटी रहेगा तो वो, अगर आप कितना भी कोई सीलिंग बना तो वो तो दैट विल कम आउट, लाइक वो ये हो जाएगा उसके अंदर, सैग हो जाएगा उसके अंदर उसमें। तो इसके लिए तो अभी ठीक है, उसके अंदर एक्सटीरियर ग्रेड आ गया, ये आ गया। लेकिन वहाँ पे भी ऐसा कि देखिए ये जो सब फर्निचर्स है, हाउ यू आर गोइंग टू यूज, आप कितना रफ ट्रीटमेंट उसको देते उतना उसका लाइफ कम रहेगा। जैसा आप टेबल बनाया है, आप प्यार से अगर उसको दरवाजा बंद कर दो, ये तो आप उसको ठप करके मार दोगे, उसके अंदर डिसएडवांटेज है उसके अंदर पार्टिकल बोर्ड का, वो जो भी है उसके अंदर। प्लाईवुड में क्या नॉर्मली क्या है ना, उसमें कुछ भी नहीं होता, नहीं उसके अंदर आप कुछ भी करो उसके अंदर, अल्टीमेटली 15 साल 20 साल के बाद में जब छोड़ के नया बनाना आपको मुसीबत हो जाता है, किस उसको निकालना। नहीं, पार्टिकल बोर्ड का प्रीलैमिनेट में ऐसा कि देखिए वहाँ पे एक तो है लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं उसके अंदर, उसमें सी लुकिंग एक देखने से आपको इंटीरियर एक्सटीरियर सब एक ही जैसा दिखेगा उसके अंदर। हाँ, आपका देखिए आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल इंटीरियर इट इज, वहाँ पे क्या करें, आपको बोला हम पार्टिकल बोर्ड यूज करेंगे, दे आर गोइंग टू यूज, उसमें इंटीरियर ग्रेड है एक्सटीरियर ग्रेड है किसी को पता नहीं है उसके अंदर। जब लैमिनेट करने के बाद में अब देखिए इंटीरियर ग्रेड एक्सटीरियर ग्रेड उसका पर्पस भी है, उसका मॉइस्चर एब्सॉर्प्शन, नहीं तो डिलैमिनेशन, ये सब चीज़ उसको कंट्रोल कर देता है उसके अंदर उसमें ऐसा कि हाँ, इसके ऊपर डिपेंड है हाउ दी पीपल आर गोइंग टू गिव यू, उसमें किस बेसिस पे आपको क्या आपको यूज बोला, क्या यूज किया उसके अंदर इसमें। हाँ, बाकी उसमें देखो थोड़ा फास्ट हो जाता है प्रीलैमिनेट पार्टिकल बोर्ड। आज देखिए आज बैंगलोर जैसा सिटी में जैसा उसके अंदर इसमें किसी के पास टाइम नहीं है उसका, ठीक है फटाफट। लेकिन जब प्लाईवुड में आपको रहेगा ना अराउंड मिनिमम 15 to 20 ईयर्स, कोई कुछ नहीं होता। अब देखिए आज लोगों का टेस्ट कुछ भी नहीं होता। अब देखिए ना हम लोग वी आर गिविंग समटाइम लोग लाइफ टाइम गारंटी, कुछ भी नहीं होता उसके अंदर अल्टीमेटली आपको। तो अभी मैं अपना घर बनाया, आई थिंक 2002 आई शिफ्टेड, ऑलमोस्ट 2000 मैंने आज घर बनाया, आज 2019 हो गया। आज एक डोर भी इधर से उधर नहीं हुआ आज। लेकिन हाँ, मैंने नहीं अपना नीचे सेम विंग में नीचे एक टेनेंट चेंज होने से वो पार्टिकल बोर्ड का एटलीस्ट उनको वो क्या होता है 4-5 दरवाजा उनको चेंज करना ही पड़ता है, क्योंकि दिस ऑल डिपेंड्स। हाँ, ये उसका है पार्टिकल बोर्ड, अगर कहीं आपने एक बना के कबोर्ड रखा, बार बार उसको चेंज नहीं किया, हाँ वो उसका लास्टिंग रहेगा। अगर समझो उसको आप कितने हाउ यू आर गोइंग टू यूज दैट, इट इज प्यार से यूज करेगा तो उसका लास्टिंग रहेगा उसके अंदर उसमें। MDF के साथ कंपेयर करें, MDF में देखिए MDF का है मीडियम डेंसिटी फाइबर, थोड़ा सा और भी पार्टिकल बोर्ड से भी पल्प इसमें है, उसको करके उसको फाइबर फॉर्म में आकर प्रेस कर देते हैं उसके अंदर। उसमें भी ऐसा ही है, देखिए आज पार्टिकल बोर्ड से ज़्यादा लोग MDF को प्रीफर करना है, क्योंकि वो थोड़ा सा स्मूथ है। वहाँ पे वो कि उसके पार्टिकल बोर्ड में क्या था तो रफ आता है, उसमें ऐसा नहीं है उसके अंदर। उसमें बाकी इट इज़ ऑलमोस्ट वन एंड द सेम, इसमें कोई नहीं है उसके अंदर। प्रॉपर्टी वाइज देखिएगा ना आप, उसके अंदर स्कोल्डिंग से आप साइड से उसको नेल नहीं कर सकते, लेकिन आजकल है इंजस है, आपको साइड से नहीं, उसको सरफेस में आपको फिक्स करना पड़ता है उसके अंदर। वहाँ भी बात प्लाईवुड में ये प्रॉब्लम नहीं होता, प्लाईवुड में आप कर सकते हैं उसके अंदर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं उसके अंदर, बिकॉज इट्स ऑल टिम्बर ना। आप जैसे प्लाईवुड का आप सैंपल देखिएगा उसके अंदर, देखिए उसके अंदर इसमें आप अगर कर भी दिया, हाँ तो एक ही प्रॉब्लम है उसका, लोग क्या कर सकते हैं उसके अंदर कारपेंटर, हाँ थोड़ा बड़ा नेल लगा उसको ठोक देते हैं, स्प्लिट होगा, कोई होगा। लेकिन इसमें ऐसा कि उसको नॉर्मली उसको बेटर टू स्क्रू इट, स्क्रू करने से क्या ना, स्क्रू उसमें टिम्बर पोर्शन है, इट विल नॉट कम आउट। हाँ, स्क्रू तो फास्ट करने के लिए क्या है, नेल, हाँ नेल करने के लिए साइज के हिसाब से, उसके हिसाब से साइज अगर बहुत बड़ा तिक्कर नेल्स नहीं यूज करेगा तो आप नेल भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है उसके अंदर। उसमें MDF और पार्टिकल बोर्ड में नहीं कर सकते, MDF साइड से नहीं होगा, साइड से नहीं होगा, क्योंकि एक बार आपने स्क्रू कर दिया, उसको निकाल दिया वापस, वो नहीं होगा उसके अंदर। उसमें उसका एक्चुअली फिटिंग होता है साइड से। वहाँ भी मैंने आपको बोला, देखिए हम उसको ये नहीं बोल रहा हूँ वो गलत है उसके अंदर, नहीं तो उसमें ठीक है फास्ट होगा। प्लाईवुड से
थोड़ा सा इकोनॉमिकल है, उसमें इतना कॉस्टली नहीं होगा उसके अंदर उसमें, Okay. ठीक है। लेकिन उसके अंदर है, हाँ आप किस तरह से उसको हैंडल करते हैं उसके ऊपर डिपेंड रहेगा उसके अंदर। उसको डेलिकेटली हैंडल करना पड़ेगा। बिल्कुल, प्यार से अगर उसको नहीं हैंडल किया तो वो आपको 4 साल के बाद में फिर आपको फिर से कम ठीक है, एक आधा शटर कभी कभी होता है उसके अंदर तो पूरा पूरा नीचे आ जाएगा उसके अंदर उसमें। तो ये है उसके अंदर, एक तो है कस्टमर को एजुकेट करके, कस्टमर को उसको एजुकेट करना चाहिए, उसका प्लस पॉइंट क्या माइनस पॉइंट क्या, नहीं तो क्या यहाँ पे क्या ना कोई बताना नहीं चाहता उसके अंदर उसमें। अल्टीमेटली उनको तो कंपटीशन है, चलो ठीक है मैं ये रेट में ये दे दिया, वो क्या यूज़ कर रहा क्या नहीं करना कोई नहीं बोलता उसके अंदर उसमें। हाँ ठीक है, उसका करके दे दे। आपके हिसाब से आप बेसिकली मैं ये समझ रहा हूँ कि प्लाईवुड इज according to you the best form of wood सुपीरियर टू compared to even timber, compared to even particle board, compared to even MDF. 100%। So if that's the case, where should someone use particle board आपके हिसाब से? देखिए मेनली देखिए आज देखिए हर जगह यूज़ करता है, कबोर्ड्स के लिए, शटर्स के लिए, किचन्स के लिए, सब कुछ है, कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं। हाँ ये तो ऐसा है कस्टमर के ऊपर डिपेंड रहता है, अगर उसमें किचन में अगर आप बार बार उसको ओपन करेंगे बंद करने के बाद में, क्योंकि प्लाईवुड के जैसा वो लास्ट नहीं रहेगा उसके अंदर उसमें। उसके अंदर आपको थोड़ा सा तो आपके हिसाब से 1-2 साल 3 साल 4 साल उससे ज्यादा लाइफ 4 साल देखिए रहेगा। मैं आपको बोला ना उसके अंदर उसमें आप एक ही चीज़ को अगर 20 बार उसको ओपन करना शटर करना उसके अंदर ऑटोमेटिकली उसकी स्ट्रेंथ और ठीक है। एक जगह आपने एक शेल्फ बना के रखा हुआ उसके अंदर, आपने उसको कहीं से उधर से किधर शिफ्ट नहीं किया, नहीं तो ये किया, ये क्या होगा उसमें वहाँ से बार बार उसको कहीं शिफ्टिंग करना ये करना, वहाँ पे पार्टिकल बोर्ड ये सब चीज़ नहीं हैंडल करना नहीं होता है उसके अंदर उसमें। हाँ लेकिन उल्टा आप अगर प्लाईवुड का रहेगा आप कर तो उसको कोई इश्यूज नहीं रहेगा, तो उसको एक ही जगह रखना है, कैसे उसको बार बार शिफ्टिंग नहीं है उसके अंदर, ये सब चीज़ के ऊपर डिपेंड है। बाकी तो देखिए आज लोग आजकल फॉर एग्जांपल स्टडी डेस्क और कमर्शियल लोकेशंस ऑफिसेज में पार्टिकल बोर्ड बहुत यूज कर रहे हैं क्योंकि इकोनॉमिकल है। आर दोस गुड अकॉर्डिंग पार्टीशंस के लिए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर, पार्टिकल बोर्ड कट के फ्रेम के बीच में डाल दिया सबसे बेस्ट है। तो आपका प्री लैमिनेटेड ऑलरेडी लैमिनेट लगा हुआ आता है उसके अंदर, आपका काम भी ईजी हो जाता है, नहीं तो एल्यूमिनियम फैब्रिकेशन में इसमें सब हो रहता है। बाकी सब जगह थोड़ा सा आपको उस चीज़ को देखिए, पहले क्या था लोग प्लाईवुड का सरफेस रफ है इसलिए पोस्ट फॉर्मिंग लैमिनेट नहीं यूज़ करता था, ये नहीं यूज़ करता था, लेकिन ऐसा नहीं है उसके अंदर आज में, क्योंकि मैं अपना बताता था उसके अंदर मैं अपना किचन में एक भी पार्टिकल बोर्ड का नहीं यूज़ किया। पहले इवन शटर्स नॉर्मली क्या बोलता नहीं है, शटर्स MDF में अच्छा है उसके अंदर आपको ये लैमिनेट कराने के लिए, उसका प्लस पॉइंट भी माइनस पॉइंट भी है उसके अंदर उसमें। हाँ ठीक है आपको ड्यूको पेंट करने के लिए, लेकिन ड्यूको पेंट करने से ये कुछ होता नहीं है उसके अंदर उसमें। लेकिन अल्टीमेटली मैंने एक शीट भी पार्टिकल बोर्ड नहीं यूज़ किया, एंटायर इवन शटर्स के लिए MDF नहीं यूज़ किया। 19 mm प्लाईवुड के ऊपर हमारा जो किट प्लाई गोल्ड आता वाटर प्रूफ प्लाईवुड आता उसके ऊपर पोस्ट फॉर्मिंग लैमिनेट लगा आज भी किया। अभी कोशिश कर रहा हूँ उसको चेंज करना है। कितना साल हो गया ऑलरेडी 14 ईयर्स, कुछ भी नहीं हुआ, एक शटर भी आगे पीछे नहीं हुआ उसके अंदर। अभी मेरा ये टेंशन है कि उसको कैसा तोड़ के निकाल के करना, वो उसे यही है। उससे छोटा पैनल उससे छोटा करा सकते हो उसको आप कर सकते हो उसके अंदर को, लेकिन लैमिनेट किया हुआ अगर उसको ऑलरेडी लैमिनेट किया उसको निकालना सब इतना इजी नहीं है, क्योंकि वो लैमिनेट के साथ है ना, वो फेस के साथ निकल के आ जाएगा। रीयूज तो नहीं होता। हाँ छोटा पैनल कहीं कट कर कहीं इधर उधर आप कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली ये एडवाइस नहीं करता है उसके अंदर ये करने के लिए। आपके हिसाब से पार्टिकल बोर्ड शुड बी यूज्ड वेयर जहां पे ज्यादा लोग कोई टच नहीं कर रहे, कोई हैंडल नहीं कर रहे, हैंडल करता है। और थोड़ा मतलब ऐसा नहीं बोल रहा नहीं यूज करना उसके अंदर, यू कुछ कर सकते हैं। आजकल देखिए आज उसका टेक्नोलॉजी आ गया, साइड से हिंजेस लगता है, ये करता है और ये सब आ गया उसके अंदर, लेकिन वहाँ पे है डेलिकेट है थोड़ा सा उसके अंदर इसमें आप कंपेयर टू प्लाईवुड उसमें आपको सो बेसिकली अगर नहीं आज MDF पे पार्टिकल बोर्ड नहीं PVC भी आ गया। हाँ, लेकिन आपको PVC इतना लाइट है, अगर आप ड्रॉवर आप खोलते तो आपको एक फील भी नहीं होता है दैट आप कोई डोर आप ओपन कर रहे हैं करके, आप इतना लाइट है। स्ट्रेंथ कैसा है PVC का? आज देखिए आज लोग बोलते हैं प्लाईवुड का रिप्लेसमेंट है, ये देखिए अल्टीमेटली मुझे तो नहीं लगता नियर फ्यूचर में कोई प्लाईवुड का कोई रिप्लेस कोई कर नहीं सकता। आपके हिसाब से अगर इफ आई वांट द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर माय फर्नीचर, the best product available MDF, particle board, PVC, WPC, ये सब के साथ कंपेयर करें, in your opinion plywood is the best? 100% अभी WPC की बात करता है उसके अंदर। अभी क्या ना थोड़ा सा मैंने केरला में ये देखा मैं ऑल्सो, क्योंकि अब फ्लड आ गया उसके अंदर उसमें, तो लोग तो प्लाईवुड कहाँ से, लेकिन अच्छा अगर प्लाईवुड यूज़ करता तो कभी नहीं होता उसके अंदर। अभी रिसेंटली अभी हम लोग सप्लाई किया अभी लॉट ऑफ मटेरियल टू कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहाँ भी 2-2 फीट पानी आ गया था। उन्होंने कॉल किया 4-5 दिन ऐसे ही पानी खड़ा रहा था, they have called for an inspection it is. Okay. Luckily
कुछ भी नहीं हुआ था उसके अंदर Oh. प्लाईवुड BWP दे यूज BWP मरीन प्लाईवुड Okay, we'll get into the grades, Man. but nothing happened to it. कुछ भी नहीं हुआ 4 days. कुछ 4 days पानी में रहा था कुछ भी नहीं हुआ उसके अंदर Wow. तो ये WPC का ऐसा देखिए अगेन इट इज सम सॉर्ट ऑफ ए प्लास्टिक आज लोग प्लास्टिक को बैन करने के चक्कर में पड़ा हुआ उसके अंदर तो आप किसको कैसे जस्टिफाई करोगे उसके अंदर यू आर कमिंग आउट समथिंग इट इज विच इज द गवर्नमेंट वांट टू गेट रिड ऑफ Correct. आज प्लास्टिक है बिकॉज हाँ ठीक है अभी बोल रहा नहीं दे आर यूजिंग सेलुलोज दिस So थिंग actually, Kitply has been used in, as you said, Kerala International Airport. And कोचिन nothing has कोचिन gone. नथिंग तीन चार दिन पानी में था वी आर सप्लाइड प्लाईवुड डोर्स सारा कुछ सप्लाई 2-2 फीट पानी में था उसके अंदर वी हैड इंस्पेक्शन बिकॉज वी हैव टू गिव देम अ गारंटी दैट इट इज द डोर्स यू आर गोइंग टू यूज दैट इज इन 5 years इफ एनीथिंग हैपन यू हैव टू रिप्लेस दैट इट इज ऑलरेडी मोर देन 4 years नाउ इट इज ये पानी कुछ भी नहीं हुआ उसमें कुछ भी नहीं हुआ एक कॉम्पिटिटर का था आई डोंट वांट टू नेम दैट इज नॉट गुड दिस थिंग दे आर आल्सो सप्लाइड द मटेरियल बट दे हैव बीन फोर्स्ड टू रिमूव द एंटायर बॉक्सेस दे हैव मेड अच्छा नहीं लगता किसी का क्यों क्योंकि आई एम नॉट हियर टू लाइक किसी को ग्रेड करना डिग्रेड करना उसके अंदर उसमें बिकॉज नॉर्मली क्या दिस इज टू जस्ट गिव एन एडवाइस because whether use a good always use for a good quality material it is whether you go for any brand always find out whether it is the right product you are buying it is So for any homeowner, you would say that like if they want the best of the best material, they should not compromise and just go with plywood. That is always it is better it is Okay. if you have a time like time restriction it is ठीक है आपको जल्दी होना ये करना फैक्ट्री आज देखिए आज प्लाईवुड का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर मेजरमेंट लेके आपको घर का कुछ नहीं फैक्ट्री में एंटायर कटिंग करके सारा कुछ करके रेडी करके आपको फिक्स करके दे दैट आल्सो कैन बी डन इन plywood Okay, not so you like get laminated plywood as well. Like yeah even you get or you go to any OEM there are people it is there are in like talk about Bangalore there are n number of factories they do the actually plywood आपको साइज आके घर पे मेजरमेंट करके आपको जाएंगे उसके अंदर आपको ये डोर चाहिए नहीं तो ये बॉक्स इतना टाइप का सारा मेजरमेंट करके फैक्ट्री में सारा कुछ कटिंग करके यहाँ पे आपको आके फिक्सिंग करके दे देगा आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा उसके अंदर उसमें Okay. तो वहाँ पे ये पहले क्या था सिर्फ पार्टिकल बोर्ड में होता था लेकिन आजकल क्या वो नया टेक्नोलॉजी आ गया लैमिनेट करके ये करना वो सब कोई प्रॉब्लम नहीं है सारा कुछ आपका टाइम वहाँ पे So वही the reason I ask you this question is what I have seen Bangalore में normally काफी लोगों को आजकल factory finish चाहिए because they don't have time and you can't blame them like यस अपार्टमेंट में क्या होता है it's a 300 flats apartment some people must have already started staying there Correct. वहाँ ठोका ठोकी होगा there will be a problem correct it is like drilling ये वो सब प्रॉब्लम है ना इसलिए नॉर्मली प्रीफर करते हैं रेस्ट्रिक्शन नहीं आप 8 बजे से पहले काम स्टार्ट नहीं करना 6 बजे बंद करो जैसा गवर्नमेंट जैसा जॉब जैसा हो गया उसके अंदर ऑफिस का तो कारपेंटर तो आपको इस हिसाब से नहीं होगा उनको क्या आपका काम खत्म करके कहीं और जाना है उसके अंदर correct सो यस तो ये क्या करता है उसमें आपका मेजरमेंट लेके कहीं हाँ, अपना so the वर्कशॉप reason- हाँ एक ही है व्हेन यू गिव टू समबडी वो इसमें आएगा तो एटलीस्ट यू विजिट 2-3 टाइम्स okay फैक्ट्री में जाके मैं किसी को नहीं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ हाँ but just वेदर दे आर यूजिंग द राइट आपने जो भी स्पेसिफाई किया मटेरियल यूज कर ये आपको देखना जरूरी है अदरवाइज क्या होता है उसके अंदर आपको हाँ चारों साइड से लैमिनेट किया होगा दोनों साइड से लैमिनेट एज बैंडिंग किया होगा आपको ये नहीं पता लगता अंदर क्या लेगा अभी उसके अंदर हाँ ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है यू हैव टू विजिट द साइट व्हेन दे लैमिनेट इट इज ऑन एंड ऑफ आप विजिट करके यू हैव टू मेक श्योर दैट इट इज आपने जो भी So- स्पेसिफिकेशन दिया वो यूज कर रहा so आप बोल रहे हो जो पार्टिकल बोर्ड में मॉड्यूलर फर्नीचर बोलते हैं that's possible in plywood है यस okay that's good पहले के शटर्स के लिए मैं आपको बोला ना वो नहीं पड़ता यार पोस्ट फॉर्मिंग इसमें नहीं होता हाँ 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 साइड से बैंडिंग नहीं होता सब कुछ हो जाता है उसके अंदर उसमें okay सारा कुछ उसमें आप कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर oh nice okay so modular furniture भी बन जाता है and I mean as you said इसका screw holding capacity and all is much यस more than any 100% particle. 100% so पार्टिकल इसमें कोई भी एक्सेसरी लग जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर मैं आपको बोला ना रॉ पेंट में लोग नेल ही लगाते थे हम करते उसको स्क्रू करना उसके अंदर उसमें बस लोग फटाफट उसको नेल ठोके कर देते उसके अंदर कोई problem प्रॉब्लम नहीं कुछ नहीं होता उसमें। nice okay so that is for factory finish so what now let me ask you this what when we were researching we found out that almost 60% of homes in Bangalore are rented just in Bangalore and in India if you take the whole scale almost 40 or 50% of homes like half of the homes are all across India are rented so rented घर में भी कोई भी अगर own करता है तो furniture कराता है and generally they try to get something done very fast so they just get modular furniture done in particle boards I mean what would you recommend to such homeowners नहीं एक तो पहले ही फोन करना किसी का फोन आता है प्लाईवुड चाहिए तो बोले नहीं मैंने रेंट पे चढ़ाना है उसके अंदर उसमें हाँ रेंट पे देना ना आई डोंट वांट यूज क्वालिटी मटेरियल दैट ये ही एक मिथ है हाँ अगर आप क्वालिटी वो एटलीस्ट देखिए आज प्लाईवुड का नॉर्मली आपको बोला ना मैंने आप 14 ईयर्स में यूज़ किया उसको कुछ भी नहीं हुआ उसके अंदर उसमें शायद कभी हो सकता है 6 महीने में टेंडर चेंज होता है 1 साल में भी टेंडर हो सकता है उसके अंदर हाँ
क्या फ़र्क पड़ता है? फर्नीचर आप शेल्फ बनाया उसके अंदर, उसमें कोई मेंटेनेंस नहीं उसके अंदर उसमें। हाँ, आज इनसाइड लैमिनेट लगता है, पहले क्या पेंट लगना पड़ता था, इनसाइड आप लाइनर लैमिनेट लगा सकता है, बाहर आप लैमिनेट नहीं तो विनियर लगा सकते हैं उसके अंदर, उसमें कोई एक्स्ट्रा मेंटेनेंस तो नहीं है। आप क्यों आप वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं उसके अंदर उसमें? नहीं मेरे को सस्ता लगाना तो क्या होता है ना, सस्ता का उसका लाइफ में भी आपको उसमें कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है उसके अंदर उसमें। हाँ ठीक है, 4 साल के अंदर उसमें अगर अच्छा प्लाईवुड नहीं यूज़ किया, कहीं ना कहीं देखिए कुछ तो ह्यूमिडिटी तो रहता ही, बैंगलोर ड्राई क्लाइमेट स्टिल वहाँ पे रहेगा, कहीं ना कहीं थोड़ा सा कुछ हो जाएगा उसके अंदर उसमें। इसलिए आप डोंट कॉम्प्रोमाइज़, क्योंकि कभी अच्छा प्लाईवुड नहीं यूज़ कर रहे तो उसके अंदर क्या मेनली क्या प्लाईवुड में बोरर का इश्यूज आ जाता है, कहीं ना कहीं उसके बाद में आपको लाइक पिन होल्स आएगा उसके अंदर, बोरर गिरना शुरू कर देगा उसके अंदर। तो ये क्या स्टार्ट, so for people who don't know what is borer, pin borer, that is only the I'll tell you, this will come out from the plywood only, it will not be there in outside, it will not go to get up, because while making the plywood, suppose if you are not use the temperature, जो proper temperature approximately 150-160 degree temperature, okay, if you don't use the proper chemicals, जो भी उसका जो एग्स है वो के अंदर रहेगा उसके अंदर उसमें। oh so it's an insect, इट्स एन इंसेक्ट, इट विल बी द लार्वा फॉर्म में रहेगा, जो भी एग्स रहेगा उसके अंदर बाद में रहेगा उसके अंदर। उसका एक प्रॉपर क्लाइमेटिक कंडीशन आ गया तो सपोज ह्यूमिडिटी सब आ गया, उसके बाद में ये विल स्टार्ट, देन इट विल लाइक उसको ड्रिल करके उसके अंदर नॉर्मली क्या विल बी पिन, यू कैन सी दैट स्मॉल पिन होल्स रहेगा उसके अंदर से, दे विल स्लोली स्टार्टेड ईटिंग दैट इट इज उसके अंदर। इसके लिए उसके अंदर वो आएगा, वो ऐसा कि वो है आपकी कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी ऑफ द प्लाईवुड इट इज। तो आज एक्चुअली क्या ना, हाँ ठीक है आपको, so coming back to the question, right, so if someone is renting their house, you said कि why you're compromising on quality, I mean one of the reason is cost effective ज्यादा होता है ना particle board का furniture और cheaper furniture। लाइफ भी तो आपको देखना पड़ेगा ना, whether you're making it for 5 years, 6 years or 10 years or 15 years it is। हाँ, rent if someone is giving, imagine he is giving it continuously on हाँ rent। कंटिन्यूसली इट ऑन रेंट इट इज, इसलिए नहीं कि 4 साल के लिए आप दे रहे फिर से आपको रिफर्निशिंग करेंगे। हाँ आपका ओन रहेगा तो आजकल लोगों को टेस्ट चेंज हो जाता है, ठीक है 10 साल हो गया अभी थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, वो अलग बात है उसके लिए। रेंटेड के लिए, हाँ, रेंटेड के लिए भी आप देखिए, डोंट यूज फॉर, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ प्लाईवुड इट इज, सम पीपल इट इज डिपेंडिंग अपॉन द उनका जो बजट के हिसाब से, देयर आर आई विल कम टू दैट, इट इज डिफरेंट ऑफ कॉस्टली मटेरियल है, तो आपके ऊपर है। स्पेशली लकीली बैंगलोर में ऐसा कि स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट बैंगलोर, दैट ड्राई क्लाइमेट, यहाँ पे कॉमर्शियल प्लाई भी आप यूज कर सकता है। सपोज इफ यू आर गोइंग टू मैंगलोर, इट्स अ पार्ट ऑफ कर्नाटका, मैंगलोर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, इट्स अ कोस्टल बेल्ट, वहाँ पे क्या ना, वहाँ पे मॉइस्चर अब्सॉर्प्शन ज़्यादा है उसके अंदर में। तो यहाँ पे बैंगलोर में कि इवन आप कॉमर्शियल प्लाई यूज़ कर सकते हैं, बट गो फॉर ए बेटर क्वालिटी कॉमर्शियल प्लाईवुड इट इज। तो आप कॉम देखिए आज बहुत मार्केट, रेंटेड हाउस में जनरली क्या होता है, पीपल रिफ्यूज, यस इट इज नॉट योर, आप किसी को दिया उसके अंदर आपके जैसा वो जरूरी नहीं यूज करना, बोला ये तो बोला नहीं मैंने पैसा दिया हुआ, दिस इज दैट एटीट्यूड इट इज होता है। इसलिए कि वहाँ पे भी आप है ना क्यों कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, क्योंकि 4 साल बाद 5 साल फिर आप उतना पैसा, प्लाईवुड अगर कोई रिफ्यूज करता है तो कुछ भी नहीं होता प्लाईवुड में, क्या होता है उसके अंदर, कहाँ क्या टूटना है उसके अंदर उसमें प्लाईवुड में, इज वेरी स्ट्रांग, यस ऑफ कोर्स, कुछ भी नहीं होता उसके अंदर उसमें। सो आपके हिसाब से अगर समझो कोई घर भाड़े पे दे रहा है, someone is giving the home on rent, if he takes a plywood furniture, he will not have to worry about for 5-10 years, 100% कुछ भी नहीं होता, even if the tenant refuses, yes no problem। नॉर्मली क्या होता है देखिए, आप बार बार बंद करते हैं क्योंकि इसका स्क्रू होल्डिंग स्ट्रेंथ है, हिंजेस है, इसका कुछ भी होता नहीं है उसके अंदर नो। हाँ किसी ने अगर तोड़ना है तो तोड़ सकते हो, वो अलग बात है, लेकिन नॉर्मल यूसेज पे देखिए आज में अल्टीमेटली आप घर खाली करते टाइम पहले मकान मालिक आपको चेक करेंगे ना, क्या तोड़ा क्या नहीं तोड़ा उसके अंदर। हाँ नॉर्मल यूसेज में प्लाईवुड में कुछ भी नहीं होता उसके अंदर, कभी भी ऐसा कि पार्टिकल बॉडी, इसका एक लिमिटेशन है उसके अंदर उसमें, वहाँ पे इट विल यू हैव टू रिप्लेस आफ्टर सम टाइम, इट इसमें है उसके अंदर। अच्छा सो बेसिकली आप जो, हाँ ये क्या है, बैंगलोर में लोग इसलिए किसी के पास टाइम नहीं है, अरे यार घर कितने बार बनाओगे आप उसमें अंदर, लाइफ में एक बार नहीं तो 2 बार, थोड़ा तो टाइम दे दो ना अपना घर बनाते टाइम उसमें अंदर। आप बोलते हमारे पास टाइम ही नहीं है उसके अंदर, गिव सम टाइम, इट इज क्वालिटी मटेरियल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, डू सम रिसर्च, कहीं से आता है आज क्यों देखो आप कंपनी का वेबसाइट में जाके ऐसा कर रहे हैं, देयर आर लाइक कंपनी नंबर्स अवेलेबल, यू टॉक टू देम एंड दे विल गाइड यू। अच्छा किस तरह से प्लाईवुड यूज़ करना चाहिए, अगर आप प्लाईवुड शॉप में जाएगा तो बोल देंगे, वो तो बोलेंगे उनको जो जिसमें मार्जिन है वो तो बोलेंगे ये लगा लो, ये मेरा लाइफ टाइम गारंटी है, मेरा गारंटी है। अब मेरा गारंटी, अब जब आपको कुछ प्रॉब्लम आते टाइम जाके देखने से आपको मालूम पड़ेगा कितना गारंटी क्या दे रहा है उसके अंदर। इसलिए अपना घर बनाते टाइम अब थोड़ा टाइम अपने दीजिए उसके अंदर, हर चीज किसी के हाथ में मत दीजिए उसके अंदर। सर आपके हिसाब से someone does invest some time, he will इट इज फॉर ए गुड कॉज, इट इज no correct, but
when he researches and then he'll conclude that plywood is the best material. If it's Yes. own also, if it's rented Of course, 100% it is. Okay, that's good. इसमें कोई है नहीं उसके अंदर, टाइम आप निकाल देगा उसके अंदर, उसमें आपको 10 साल 15 साल अगर को कुछ नहीं देखना है उसके अंदर, आप उसको, हाँ अगर विनियर लेगा उसको एक बार उसको रिपॉलिशिंग नहीं तो कुछ ये करना पड़ता है, बाकी तो कुछ भी नहीं होता। या लैमिनेट रिप्लेस करना। हाँ, लैमिनेट आजकल टेक्नोलॉजी इतना आ जाएगा, लैमिनेट क्या पहले थोड़ा डल हो जाता था, क्योंकि नॉर्मली आपका घर का ना, हाँ डायरेक्ट सनलाइट नहीं आना चाहिए, इवन आपका मेलामिन पॉलिश्ड फर्नीचर है, डायरेक्ट सनलाइट आएगा वो फेड होगा उसके अंदर, हाँ उसको अवॉइड कर दीजिए डायरेक्ट सनलाइट। इवन लैमिनेट में भी होता है डायरेक्ट कंटिन्यूस आने से थोड़ा सा डल हो जाएगा, ये तो बाकी कुछ भी नहीं होता, इट्स लाइफ लॉन्ग, उसमें कुछ भी नहीं होता उसके अंदर। ओके, नाइस। ओके, सो नाउ आई वांट टू आस्क यू दिस, नाउ प्लाईवुड मैन्युफैक्चर होने में यू आर बेसिकली कटिंग ट्रीज, सो एज यू मेंशन्ड राइट, यू ट्री कट, so like isn't there an environmental impact on this? Yeah, I'll tell you that it is. This is the one issue we have faced in initially, plywood वाला पूरा forest खत्म कर देते, it's a fact. Okay. हाँ, you have a responsibility towards your environment, it is it. Okay. ऐसे किटले हमने क्या किया था उसमें, we have started agroforestry, planting trees. Okay. Like in Raipur, we have taken like marshland, जो खुला पड़ा हुआ था लैंड गवर्नमेंट से लीज पे लेके, वी आर टेकन ऑन लाइक दिस थिंग आल्सो, वी स्टार्टेड प्लांटिंग ट्रीज। लाइक आप देखिए उसके अंदर, आज नॉर्थ में जाइए उसके अंदर, देयर आर सर्टेन बेल्ट्स लाइक मेनली प्लाईवुड इट इज। आज प्लाईवुड आप रिप्लांट कर सकते हैं, आज ऐसा नहीं है उसमें टिम्बर कटिंग करके, आज परमिटेड भी नहीं है टिम्बर कटिंग करना इंडिया में परमिट। हाँ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दे विल, उनके हिसाब से कोई कटिंग करके दे विल ऑक्शन, डू ऑक्शन, तो आपके लिए सफिशिएंट नहीं है, तो यू हैव टू प्लांट द ट्रीज। लाइक ये है पॉपुलर वुड है, मेनली दिस इन नॉर्थ, लाइक यूकैलिप्टस। कितने साल में ऐसा वुड आपको? देखिए ये पॉपुलर ट्री लोग 5 साल के बाद में, 6 साल के बाद में भी कटिंग करके उसको, दिस विल बी गर्थ विल बी वेरी लेस। आज मशीनरी इतना छोटा सा आगे, उसको आप पील करके आप कर सकते हैं उसके अंदर इसमें। हाँ, लेकिन ये है इसके अंदर आपका नहीं तो क्या 30 ईयर्स 40 ईयर्स का ट्री कट करता था उसके अंदर, इसमें नहीं होगा 5 साल 10 साल। अगर यूकैलिप्टस है 10 ईयर्स 12 ईयर्स इसके अंदर उसमें ग्रोथ हो जाता है उसके अंदर उसमें। जैसा सिल्वर वुड है, आज यहाँ पे कर्नाटक में यूज़ करता है, इसमें 12 to 15 ईयर्स में कटिंग करके उसको कर सकते, दे विल डू द रिप्लांटेशन आल्सो, इसलिए कि एनवायरनमेंट का वहाँ पे पहले से ऐसा नहीं, बिकॉज गवर्नमेंट ने 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने, like any other fruit or crop, you just replant whatever. यस ऑफ कोर्स। आप देखिए ना, आज इसमें है नॉर्थ में देखिए, उसके अंदर MP UP पंजाब हरियाणा में देखिए, उसके अंदर कहीं भी आपको देखेगा आपको यूकैलिप्टस ट्री और पॉपुलर ट्री इतना रहेगा उसके अंदर उसमें, तो कटिंग करके यूज़ करते हैं। इसलिए कि क्योंकि आज इंडिया में वुड ही नहीं है, तो कहाँ से आप कट करोगे उसके अंदर उसमें। हाँ, कुछ पोर्शन में पीपल आर इम्पोर्टिंग, मतलब एक लिमिटेड है, वहाँ भी कहीं भी, वहाँ भी अगर बैन हो गया तो। What about the quality of the plywood? Is it still the same? यस, इसके अंदर क्या, ठीक है, देखिए प्लाईवुड में क्या ना, आपको यू हैव टू डू द प्रॉपर सीजनिंग टिम्बर। आप प्लाईवुड बनाते टाइम उसमें, ठीक है, कोर बनाया, इट विल बी लॉट ऑफ ह्यूमिड इन द थिंग, वाटर कंटेंट रहेगा उसके अंदर, आपको उसको ड्राई करके उसके अंदर, सो दैट विल टेक आउट द एक्स्ट्रा मॉइस्चर, उसको ड्राई करके फिर उसको करके करने से उसमें इट विल लास्ट। कुछ भी नहीं होता उसके अंदर उसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। नाइस। सो बेसिकली लाइक अ नॉर्मल, यू नो, कोई समझो कोई फ्रूट का कंपनी, दे प्लांट फ्रूट का ट्रीज एंड दे यूज दैट, सो सेम प्लाईवुड का ट्री, लाइक टाटा, दिस थिंग इट इज टाटा कॉफी, टाटा टी, ये तो सिल्वर इतना है, and they were also manufacturing. I don't think now they are into this thing. It is, they use their timber for this thing. It is. Okay. So timber, yeah. Agroforestry is to a certain extent. So basically जो environmental impact था, you हाँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर था 1996 दिसंबर में, told to shut down all the plywood factories. Okay. Because plywood factory कहाँ पे होता था? Where forest is there? Like नॉर्थ ईस्ट में है, अंडमान में है, वहाँ पे plywood factories होता था, क्योंकि कटिंग करके immediately आपको वहाँ पे करना। ये आसाम, क्योंकि नॉर्थ 96 में सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया कटिंग ऑफ ट्रीज। उन्होंने बोला नहीं, विदिन 100 किलोमीटर रेडियस का फॉरेस्ट के अंदर एक भी प्लाईवुड फैक्ट्री नहीं रहना चाहिए। टोटली स्टॉप्ड। वी हैव सफर्ड लाइक एनीथिंग, वी हैड ऑलमोस्ट 8-9 फैक्ट्रीज इन नॉर्थ ईस्ट। तो वहाँ पे क्या किया लोगों ने, शिफ्ट कर दिया उसके अंदर। कुछ दे आर स्टार्टेड लाइक ऑन प्लांटेशन टिम्बर, इसमें यूकैलिप्टस से शिफ्ट कर दिया उसके अंदर इसमें। So now most of your plywood is done from agroforestation. Yes. That's great. Eucalyptus popular, there are in south here silver, बहुत सारा varieties है। What's the name of the south trees? Silver oak. Normally a coffee plantation के before shade they like grow the trees, ना it is. Mainly in Karnataka it is available and it is a good tree. Whereas in north if you go, you'll get eucalyptus and poplar. There are Kerala में है कुछ,
अलग अलग टिम्बर है. दैट इज ऑल लाइक इट इज नॉट दिस थिंग ऑल लाइक agroforestry would only it is. Nice. So जो environmental impact था तो you pretty much taken care नहीं of. नहीं definitely it is. So now one of the common things which a lot of our listeners have asked us is कि ठीक है आपने बोल दिया कि plywood is a great material, but when they go to buy plywood, they get very confused. So there will be one plywood from 50 rupees per square feet to 200 rupees per square feet. I mean, there's so many grades, there's so many companies. Like कोई बंदा, how does he decide कि मेरे को ये चाहिए? नहीं मैं आपको बोला ना, डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द, लाइक बैंगलोर का कोई आदमी है. So I'm going to purchase plywood. So just tell me how I should make the decision. Okay. Suppose you are in Bangalore it is. See, बैंगलोर थोड़ा सा है ड्राई क्लाइमेट है उसके अंदर. हाँ ठीक है, ओकेशनली रेन होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसके अंदर. तो यहाँ पे ऐसा नहीं, इवन आप यू गो फॉर ए commercial plywood, that is, I'll tell you what is commercial plywood. Should I explain you what is? Please explain. Yeah. I told you this is like, this is the wood. This is the basic raw material. There is a glue required. So they have to do the this thing, gluing of the core. ठीक है. It starts with one. पहले क्या सब लोग यूरिया UF bonded. That is urea formaldehyde. समथिंग लाइक ये जो फेविकोल आता है ना, आप उसको देखिए स्मेल आएगा उसके अंदर फेविकोल. नहीं तो आज फार्मर्स खेती में जो यूरिया है, यूरिया एंड फॉर्मेलिन, यूरिया फॉर्माल्डिहाइड यूज करके, दैट इज ए ग्लू. वो नॉर्मल लाइक फेविकोल का है टाइप में आता है उसके अंदर, उसको आप उसके आप कर सकते हैं उसके अंदर. हाँ, ये हो गया कमर्शियल प्लांट. अच्छा, इसमें भी बाद में चेंजेस आ गए. इसका एक डिसएडवांटेज क्या है उसके अंदर, इसमें इट विल लिमिट, उसमें से ये फ्यूम्स आ जाएगा उसके अंदर, सेंस स्मेल. सपोज यू आर यूजिंग, आप एक कोई भी प्लाईवुड, लोकल प्लाईवुड का किसी का शॉप में, नहीं तो गोडाउन के अंदर आप चले जाइए, उसके अंदर आपका आंख चलना शुरू हो जाएगा उसको, बिकॉज इट्स एमिशन ऑफ यूरिया. इसके वजह से अभी क्या किया लोगों ने, ये कमर्शियल प्लाईवुड. लेकिन कमर्शियल में भी ये इश्यू आने से इसके अंदर क्या, सपोज ये पानी में रहेगा, कुछ बारिश में बिक जाएगा, उसके अंदर कहीं भी थोड़ा कुछ अब्सॉर्प्शन आएगा, दिस विल गेट सेपरेटेड because that glue is dissolving water. It will get dissolved in water. तो ये सब अलग अलग हो जाएगा, इसलिए आपको डिलैमिनेशन टोटली स्प्लिट हो जाएगा. अभी क्या किया लोगों ने, थोड़ा सा ये यूरिया फॉर्मेलिन कोई भी नहीं यूज कर सकता. हाँ ठीक है, कॉस्ट इसका कम है तो वहाँ पे. तो नेक्स्ट इज उसमें अभी क्या किया, MUF, मेलामिन यूरिया फॉर्मेलिन. मेलामिन इट्स ए सुपीरियर क्वालिटी. So melamine will give a, suppose उसका परसेंटेज के हिसाब से, सपोज बट 2%, 3%, 5%, 6% मेलामिन के हिसाब से कंटेंट इंक्रीज करने से दैट ग्लू विल पक्का. इसके आ जाता है, ये आता है MR ग्रेड में, मॉइस्चर रेसिस्टेंट. MR ग्रेड दिस इज नॉर्मली दैट स्टार्ट विद कमर्शियल प्लाईवुड को बोलते हैं MR ग्रेड उसके अंदर. उसमें इसके MR ग्रेड में भी एक आज ग्रेड आगे MUF बॉन्डेड, मेलामिन यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड. नॉर्मली उसका एक्चुअली आप देखिए ना, फॉरेन कंट्रीज में फिनॉल बैंड है, तो नेक्स्ट इज फिनॉल, दैट इज हायर वेराइटी ऑफ दिस थिंग. तो वहाँ पे जो क्या करते, यही मेलामिन का कंटेंट इंक्रीज करके, सो दैट द रेजिस्टेंट पावर विल इंक्रीज. तो 2%, 3% इसमें ऐड करने से सपोज इफ 7%. बिकॉज दैट इज हर्साडस केमिकल, इट इज मीनिंग ऑफ इंडिया में, क्योंकि जो भी कोई नहीं होता इंडिया में होता है. ठीक है, हम लोग को ऑप्शन भी नहीं है. अच्छा, ये आगे MUF, नेक्स्ट इज MUF. ये सब प्लाईवुड है, जैसा ये सब है उसके अंदर. दिस इज ऑल लाइक MUF बॉन्डेड. Just to show in the camera, this is MUF bonded. MUF bonded. This is stronger than your normal commercial plywood. Yes, stronger in the sense इसमें एडवांटेज है. जैसे आपने इससे घर पे बनाओगे, उसके अंदर आप कमरे के अंदर बैठ नहीं सकता. That will have that urea emission. It will burn your eyes. Okay, but this won't. No, MUF won't. एक एडवांटेज उसके अंदर, इसलिए लोगों ने आज डिस्कार्ड कर दिया. ग्रेड क्या नाम है? MR ग्रेड. दिस इज आल्सो MR ग्रेड, मॉइस्चर रेसिस्टेंट ओनली. लेकिन ग्लू इज बेटर देन नॉर्मल. ये पहले जो यूज करता था यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, MUF ग्लू यूज करना शुरू कर दिया उसके अंदर. दिस इज आल्सो, दिस इज इसके अंदर भी एक ग्रेडिंग है, जैसा 303, IS 303. दिस इज MR ग्रेड, दिस इज मॉइस्चर रेसिस्टेंट. इसमें इसके ऊपर नेक्स्ट इज BWR में ऐसा होता है उसके अंदर. उसमें नॉर्मली ये जो बॉन्डिंग का जो ग्लू है, that normally they change into phenol. देखिए आज phenol is slightly expensive. आज मैं I'm giving a fact, it is लोग they do the modified glue. They mix MUF and phenol. हाँ, you can't say that it is more of, then the grade will come down. It is. So even MUF can withstand this thing. It is this. So what does BWR stand for? Boiling water resistant. That is also as per IS 303 only. 303, that is the ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड. सो BWR मतलब लिटरली क्या प्लाईवुड को अगर नो देखिए नॉर्मली, नहीं आपको मैं बता देता हूँ.
MR ग्रेड तो उसमें ये नहीं कोई टाइम नहीं बोलता उसके अंदर इसमें, हाँ ठीक है, सपोज इफ दिस पीपल स्टार्टेड यूजिंग MUF ब्लू इट कैन विस्टैंड, इवन अगर आप पानी में भी डाल के आप लेके रख लीजिए कुछ नहीं होता, एक दिन में पानी में डाल दीजिए इसके लेके उसके अंदर MUF ब्लू के हिसाब से। BWR में नॉर्मली एज पर ISS स्टैंडर्ड्स 8 आवर्स बॉइलिंग में रहना चाहिए, तो लेकिन आज वाई शुड somebody boil the furniture it is, हाँ this is just to एक टर्म ऐसा है because it can withstand 8 hours boiling, it can withstand the time climatic conditions, थोड़ा आगे पीछे अगर समर में है, विंटर में, बारिश में है, उसको कुछ नहीं होता, उसको just to give a this thing it is, this will going to last so many years it is, otherwise yes boiling water कुछ भी नहीं होता उसके अंदर। Oh my God, wow. Next is BWP grade, नॉर्मली BWP इस मतलब इसमें बॉइलिंग वाटर प्रूफ ग्रेड, इसके अंदर क्या ग्लू चेंज होता है, ग्लू चेंज हो जाता है उसका, टिम्बर विल रिमेन द सेम इट इज, मैं आपको बोला था अगर आप वुड इज द सेम, हाँ ये आपको ऐसा कि दे रहा डिफरेंट टाइप्स ऑफ वुड, सपोज आप पॉपुलर से बनाएंगे बिकॉज द पॉपुलर का क्वालिटी उतना है बिकॉज इट इज गोइंग टू इट इज कट आफ्टर 7 years 8 years, हाँ थोड़ा स्ट्रेंथ है बट नथिंग विल हैपन इट, हाँ देयर इफ यू गो विथ सिल्वर, हाँ स्लाइटली बेटर वुड, हाँ यूकैलिप्टस इट इज सर्टनली बेटर, देयर आर BWP में कौन सा यूज होता है, BWP एनी टिम्बर कैन बी यूज, पहले था ये नहीं यूज करना वो नहीं करना, बट देयर आर सो मेनी अमेंडमेंट्स हैज कम इन IS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के लिए, आप उसमें अंदर जो भी स्पीशीज है इट कैन लास्ट लॉन्ग। BWP मींस बॉइलिंग वाटर प्रूफ, मतलब कुछ भी नहीं होता कितनी इसके अंदर भी, इसके अंदर के बॉइलिंग वाटर प्रूफ में क्या ना, जिसमें फिनॉल का दिस विल बी 100% फिनॉल बॉन्डेड इट इज, ओके इट वोंट अफेक्ट मी इन एनी वे, नो बट है इश्यू है बिकॉज दिस इज फिनॉल आल्सो, इट्स अ हजारस केमिकल इट इज, ओके टू नॉर्मल पीपल जो फर्नीचर करा पे देखिए इट इज अ हेल्थ हजारस ओनली, बट नो प्रॉब्लम बिकॉज इट इज नॉट दैट काइंड ऑफ इतना एमिशन नहीं है उसके अंदर, इट्स अ लिमिटेड, तो वैसा नॉर्मली आपको मुझे ये नहीं बोला उसके अंदर, मैंने अभी मैं अपने घर पे रह रहा हूँ, इट इज ऑल लाइक फिनॉल बॉन्डेड, लास्ट 15 years आई एम देयर, इट इज नथिंग, हाँ बट फिनॉल इज लाइक इतना नहीं है उसके अंदर, फिनॉल इज देयर इज, इसका अल्टरनेटिव क्या है फिनॉल का, देखिए आज लोग क्या करते हैं MUF का यूज करते हैं, मेलामिन यूरिफॉर्मल्डिहाइड का इसके अंदर उसमें वहाँ पे ऑल्टरनेट, देखिए आज इसमें है जैसा देयर आर सर्टेन डोज इट वोंट एमिट, बट द प्रॉब्लम इज दैट बॉन्डिंग का प्रॉब्लम, ये सब इश्यूज आता है स्ट्रेंथ में, फिनॉल इज ओके, फिनॉल सर्टेन एक्सटेंट वैसा नहीं होगा था बिकॉज आप इतना ज्यादा कॉशियस होता, देन यू हैव टू थिंक ओके बिकॉज सी यू हैव टू कम आउट ऑफ योर हाउस, देन द एयर यू आर गोइंग टू like breathe, it is dangerous than what you have the phenol what you are used to, तो उसमें वो नहीं होता क्योंकि आज इतना पोल्यूशन है, हाँ इट इज यू आर सेफ at your home, it is better, इसलिए हाँ ठीक है, this is a it's a hazardous chemical, but how strong is BWP, like कितनी देर, BWP का कंटेंट ऐसा है 72 hours boiling water, my god 72 hours, that is also continuously you have to this thing in the water, 72 hours only then you get the certificate, this is mainly used in marine like boat शिप, तो वहाँ पे यूज करता है बिकॉज देर माइक्रो लाइक ऑर्गेनिजम्स है, उसमें अटैक करेगा, ये है वो है उसके अंदर उसमें, तो हमने कि बोट के लिए वगैरह यूज करता है उसके अंदर उसमें, घर में भी यूज करते हैं लोग, हाँ घर पे, क्योंकि वाटरप्रूफ जहाँ पे होगा वाटरप्रूफ, जैसा किचन में है समथिंग लाइक इट विल गेट इनटू कम इनटू कांटेक्ट विद वाटर, तो उसके लिए आप उसके MR यूज करने से क्या होता है उसके अंदर उसमें, हाँ इमीडिएटली कुछ नहीं होगा उसके अंदर उसमें, कंटिन्यूसली जैसा किचन में वाटर यूज हो जाए, कहीं ना कहीं थोड़ा कुछ तो वाटर इट विल सिप इनटू उसमें आ जाएगा, एडजस्ट में होगा, क्योंकि कभी कभी होता है एड्ज बाइंडिंग किया हो रहता है, थोड़ा बाद में उसके क्या करते हैं ना कि पानी आ जाता है, उसके वजह से स्टार्ट गिविंग प्रॉब्लम, वेयरएज इसके अंदर जैसे बॉइलिंग वाटर प्रूफ में कुछ भी करो कुछ भी नहीं होता। नॉर्मली बैंगलोर का कॉम्बिनेशन ऐसा है फॉर इनसाइड फॉर लाइक कबोर्ड्स दिस थिंग यू गो फॉर ए बेटर क्वालिटी कमर्शियल प्लाईवुड, MR grade good quality, whether it is what do you mean by good quality, good depends upon the timber, what kind of timber you can, whether you are given any so if I'm going to buy, so if I come to Kitply for example, when you say good quality commercial grade MR, so what am I supposed to buy? See, normally I'll tell you, we even stop, that is also a crime. If you make a like inferior quality wood, I'll tell you, you are talking about agroforestry and all that it is. See, this will not last long. So what will happen, आप जो प्लाईवुड यूज किया एक बार वो खुल गया, कुछ नहीं, उसको जलाने के लिए यूज कर सकता है। अगर 2 साल में आप लकड़ी काट के 2 साल 3 साल के अंदर खुल गया, यू आर कमिटिंग ए क्राइम। आज 3 साल के बाद में फिर आपको प्लाईवुड बनाने के उतना आपको कट करना पड़ेगा उसके अंदर। तो इसके लिए वी स्टॉप इंफीरियर क्वालिटी, कोई भी प्राइस में कॉम्प्रोमाइज करना। आई अंडरस्टूड गुड क्वालिटी सर, व्हाट आई एम आस्किंग यू इज, मैं अभी एक होम ओनर हूँ, ठीक है, मैं जाता हूँ
प्लाईवुड खरीदने के लिए मेरे को पता चलता है ठीक है, I have to buy MR grade. अब MR grade मेरे को समझ आ गया. MR grade में गुड क्वालिटी क्या आता है, बैड क्वालिटी आता है. You have to ask about what kind of timber they are going to use it as. Okay. Normally So this is widely available as eucalyptus. Okay. So if they use eucalyptus का MR grade. Eucalyptus there are नहीं ऐसा नहीं उसके अंदर. What kind of treatment you give? In the sense it is any wood can be used for plywood it is. But there are certain woods वो अगर उसको treat नहीं किया तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा. So अगर कोई कंज्यूमर जाके बाय कर रहा है तो क्या लेबल देखना चाहिए? From which company you are going to buy? तो वारंटी क्या, कोई कंपनी आपको बोलता है, लोकल कंपनी बोलता है 10 साल के वारंटी, यू आर नॉट श्योर 10 years में वो कंपनी रहेगा कि नहीं रहेगा, आपको कुछ भी नहीं है उसके अंदर. करेक्ट. एंड एक्चुअली यू शुड हैव एन लाइक दिस थिंग डायरेक्ट एक्सेस टू द कंपनी, एटलीस्ट टॉक टू देम. ठीक है सर, इसमें वेर इज द राइट डीलर एंड वेदर यू आर गेटिंग द राइट मटेरियल इट इज सो बेटर. तो आपको आज इतना सारा कुछ नंबर्स अवेलेबल है, ट्राई टू कॉन्टैक्ट देम. इट इज वी हम लोग ये भी क्या किया उसके अंदर, इसमें वी हैव ए लाइक ऐप. यहाँ पे करने से कंपनी का ऑटोमेटिकली द नंबर विल कम, दे कैन टॉक टू अस डायरेक्टली इट इज. अच्छा. तो उनको हम लोग भी गाइड कर देते हैं उसमें अंदर, वहाँ पे ये करना उसके अंदर. So आपके हिसाब से the way a consumer can decide the company, of course it is. See, there are A, B, C, D. There are so many companies. You have to come see the reputation of the company, whether what they are talking and whether they are going to like give you that kind of a security. What material you are going to buy? It is वो बोले नहीं हम 50 साल के, आज गारंटी में कोई कम नहीं करता है उसके अंदर. ठीक है, 500%, 600%. So you have to like think logically. So if I ask you now, 31 years you've been in this industry. How many times like have customers call you 5 years later and ask you for? Some cases, certain cases happens. It is not that. What kind of service you are going to give it is. So how you are going to? Have you been able to give? Very few. It is. Very few. हाँ, plywood का मैं आपको बता देता हूँ. When you start using only, you'll come to suppose you buy a commercial plywood. You cut it. अगर उसमें कुछ इश्यू होगा तो there is a delay. You come to know that time only it is. तो एक प्लस एक प्लाईवुड का ना, एक विंटर, एक समर में आपको मालूम पड़ेगा whether it is going to last or not. Okay. This borer issues normally starts in summer. Okay. When it get like heated, normally temperature high raise होने से it will come into this thing it is. So एक विंटर और साल में एक बारिश का सीजन खत्म हो गया तो आपको मालूम पड़ता है. हाँ, कटिंग में आप कटिंग करके आपको मालूम पड़ता है उसके अंदर whether it is a good plywood or not. हाँ, there are एक मिथ ऐसा है, कोरगेप नहीं आना चाहिए उसके अंदर, ऐसा नहीं उसके अंदर. हाँ, कोरगेप आएगा. देखो, सी व्हेन यू आर असेंबलिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ veneers, हाँ ये तो इट इज नॉट फुली मैकेनाइज, कहीं ना कहीं छोटा मोटा कोरगेप तो छोड़ता ही उसके अंदर. हाँ, इट शुड नॉट बी वेरी बिग. तो उसमें ऐसा कि वेदर गोइंग टू थ्रेटन द लाइफ ऑफ द प्लाईवुड उसके अंदर, नहीं तो उसमें ऐसा कि वो करने से ये नहीं होगा वहां से. बाकी as you said, you were telling look for a good company. Look for a good company. There are people, they will say, because you don't know because whether the company will be there it is after 5 years. Okay. So look for, I told you I am here it is for the last 31 years. Still the people, I started in Bombay, they have my number it is. Oh wow. One contractor in Pune, he called me last year, he wanted some like SBI, some work it is. He called me after 17 years. Wow. He got the number from somebody. Okay. Sir, you are in Bangalore, I have a work there. This is kind of, see, you can't run away from the customer it is. When you are giving it is, you are giving, you have to take the responsibility. Correct. Okay, you are, and one cutting, definitely, it is not, it is a plywood. Sometimes what happens, glue थोड़ा ज़्यादा dry हो गया. In the sense, time में कोई होगा. हाँ, sometimes it happens. ये नहीं बोल रहा कि play में, नहीं तो हमारा plywood में company, हाँ, company, this may happen it is. And what way you going to handle that complaint? Correct. Whether the customer, you are going to get the customer satisfied or not. ये है. हाँ, 2 प्लाईवुड शीट हो गए, उनको बोल दे सर कटिंग करके, हमें इतना बोल देता है सर आप कटिंग करते टाइम खुला होना साइड में रख दीजिए उसमें, प्लीज डोंट यूज इट. Okay, we'll get it replaced. Definitely it is. See, when you are taking money, why can't you do that it is? See, when you are, see, there are plywood available in the market, it is cheaper than the second. Then why should the customer pay you like premium? With more it is. Then that means you have to give some kind of assurance, some kind of a service that it is what other people are not giving it is. So according to you, when I go to buy kit ply and I MR grade for cabinets. This I'll tell you. Normally because Bangalore climatic condition में ऐसा है, good quality MR grade, but don't go for a cheaper quality. Good quality MR grade. At least, see, I'll tell you why good quality. That depends upon the use. Suppose if it is for your house, ठीक है. There are certain projects like government projects. Their requirement is they want to last it for 4 years, 5 years. We can't tell them, sir, you go with the premium quality material. There, see, when you reduce the quality, you have to price, you have to somewhere you have to compromise on. We have to change the timber. Correct. So which is like there are certain timber it is expensive, so you don't use in that. You use a normal timber. Normal timber. Okay. That the life they wanted the life for 4 years, 5 years का है. So why should you go, sir?
प्रीमियम प्लेट मटेरियल है इसमें। हाँ ठीक है, वहाँ पे ये है, अगर शॉप का इंटीरियर कुछ हो गया था, हाँ वहाँ कहीं ना कहीं आप घर का, ठीक है, घर पे देखिए डिसएडवांटेज है, कहीं आपका रहना शुरू कर, कंप्लेंट है, ये है, लॉट ऑफ इश्यूज, हेडेक है उसके अंदर। प्रोजेक्ट्स में क्योंकि वहाँ का उनका लाइफ ये, देर आर बैंगलोर में है, देर आर सो मेनी लाइक फॉरेन कंपनीज, सॉफ्टवेयर कंपनीज, दे कम, देयर अल्टीमेट एम इज, ठीक है यार वो 4 साल, लाइक ज्वेलरीज, आज उनका सिस्टम क्या, 4 years के अंदर दे डू द redo the this thing, so they, why they have to go for a premium quality, very high quality material, हाँ, they should be home, they have to go for a good quality because you see it's a like एक ये sentimental issue है क्या, बट आपने यूज किया, आपका घर के लिए यूज किया, मैंने आपको बोला ना, आपका लाइफ टाइम हो सकता है 1 बार नहीं तो 2 बार आप फर्निशिंग घर बनाएंगे, अगर उसी में आपको कोई इश्यू होगा, यू आर गोइंग टू कर्स द कस्टमर ना, तो प्लाईवुड उनको बोलेंगे यार this thing it is, so you have to make sure that your customer so according getting to you for cabinets MR grade plywood। अच्छा एक और आ जाता है, what is bed, हाँ मैं आपको बोला नहीं कबोर्ड्स के अंदर, ठीक है, प्लाईवुड में आप उसको कमर्शियल प्लाईवुड में, इसमें भी ऐसा कि बहुत डिफरेंट लाइक 1 year इज लाइक 7 years वारंटी, देयर इज, वी हैव कम आउट विद दिस थिंग, इट इज बिकॉज वी हैव इंक्लूड द टिम्बर, सी यू कैन फ्रॉम द साइड्स आल्सो यू कैन मेक आउट, yeah it's very different actually. So this we know that it is in next 10 years nothing is going to happen, it is. Oh, so this has 10-year warranty. 10 years nothing will happen, it is. Wow. Which timber is this, sir? This is all like eucalyptus, mahogany, there are good quality in the sense it is immediately वो उसके अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर, ये वो सब कुछ भी ये नहीं होता उसके अंदर, बेस्ट क्वालिटी उसका ऐसा कि वहाँ पे भी ऐसा कि इसमें देयर यू कैन सी a mix of wood you are used, it is. So somewhere, see, I'll tell you not to reduce the quality or increase the quality. One thing is, timber is the main raw material, it is. Okay. When you use good quality timber, automatically the quality also will improve, it is. So 2 places where quality can be reduced and increased. One is timber, one more is glue. Glue. That is the 2 parts. Okay. There are, like in some other thing, chemical treatment you give for not getting affected by termites and borers. Termite, I don't want to use the word termite. See, I'll tell you. Timber is a natural product, it is. Okay. You're talking about white and termite, it is. When you construct your house, you have to take the precaution, it is. You don't expect a timber product, it is a natural product to resist. It can resist to a certain extent. Suppose there is white ant attack in your house and you are going to make a furniture that it is, I'll tell you 100% will get attacked. Oh. So when you construct the house, it is, the architect or contractor will tell you you have to use the chemical, you have to pour so many. Which chemical should they use? No. That is different for white ant and all that. They will suggest you that that is available in bulk. So the liters, it is not liters. In one small house only, you may have to go for around 25-30 liters. When you put the plinth. कितना खर्चा होगा सर approx? नहीं, उसमें खर्चा तो कुछ भी नहीं होगा, हो सकता है 100 रुपये 200 रुपीज लीटर्स का उसमें का। आप बोल रहे हो इतना केमिकल ट्रीटमेंट करके 500,000 रुपए खर्चा करके 500,000 नहीं होगा, अराउंड 5,000-6,000 रुपीज वहाँ पे। ये आपको मस्ट है क्योंकि जो टिम्बर सॉइल में ना, डिपेंड्स अपॉन द सॉइल क्वालिटी, ये वाइट एंड्स का सबका प्रॉब्लम आ सकता है उसका। हाँ, वुड बोरर का कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज यू सेलेक्ट द टिम्बर अच्छा क्वालिटी। देयर आर सर्टेन टिम्बर लाइक रबर है, सबसे बेस्ट वुड है। हाँ, इफ यू ट्रीट रबर देन इट इज फाइन, अदरवाइज उसको ट्रीट नहीं किया। रबर ट्री का ऐसा है, आज केरला में रबर ही अवेलेबल है, उसको कट करके विद इन 48 hours यू हैव टू डिप इन द केमिकल, इट इज इवन बिफोर ट्रांसपोर्टिंग इट टू सम अदर, फैक्ट्री दूर हो सकता है, आप उसको डिप करके उसके बाद में ये करना। और उसमें जब ये इस तरफ से जो देखिए टिम्बर को आप ट्रीट नहीं कर सकता, बिकॉज केमिकल थ्रू एंड थ्रू पेनिट्रेशन नहीं होगा। हाँ, सपोज यू आर यूजिंग अ कोर प्लाईवुड, केमिकल सोल्यूशन में यू कैन डिप इट, it will through and through it will penetrate. That is called, again, जो glue use करता है, glue line protection, GLP, glue line, they will add the chemical to that, it is. Then you spread the glue. So that will be everywhere, it is. So that will give a protection. उसके लिए आता है उसके अंदर उसमें। वहाँ पे ये white ants का है, देखिए कुछ लोग बोलता है, because I am not very convinced about it is white ants में, क्योंकि मैंने ऐसा भी देखा, बहुत लोगों ने बोला white ants नहीं आता हमारा, हम ये करेंगे वो करेंगे, white ant अटैक हुआ इसलिए कि देखिए मैं वो प्लाईवुड को नहीं ब्लेम कर रहा हूँ उसके अंदर। हाँ, इट्स अ डेड आइटम, इट इज। प्लाईवुड आपने कट कर दिया, ये नहीं है उसके। अगर सपोज आपने आपका उंगली कटा हुआ उसके अंदर, सपोज इफ यू डोंट अप्लाई, यू आर अ लिविंग थिंग, इट इज। अगर उसको आपने पट्टी बांधा नहीं आया था, दिस इज गोइंग टू गेट कॉम्प्लिकेटेड ना। ये है उसके अंदर, दिस ऑलरेडी यू आर कटेड ट्री लॉन्ग बैक। हाँ, उसके अंदर आपने ट्रीटमेंट दे रहा है उसके अंदर, उसको आपको प्यार से, मतलब wherever you construct a house, it is normally flats में white ants का इश्यू नहीं होता। white ant का इश्यू कहाँ पे होता है? इंडिपेंडेंट हाउसेस में। ओके। इंडिपेंडेंट हाउसेस में नॉर्मली क्या लोग वहाँ पे, क्योंकि इसमें ना एक ही अपने है, अगर प्रॉपर
ट्रीटमेंट नहीं किया उसके अंदर. So आपके हिसाब से जो टर्माइट और बोरर का इशू है, इट्स वेरी सिंपल. व्हाइल कंस्ट्रक्शन जस्ट गेट इट. यू हैव टू ट्रीटमेंट डन इट इज. प्लाईवुड के हर चीज आप प्लाईवुड के ऊपर नहीं छोड़ सकते उसके अंदर. करेक्ट. तो आप उसमें ऐसे कि आप देखिए. अपार्ट फ्रॉम दैट आल्सो यू डू अ लॉट yes yes we do chemical treatment but to a certain extent that will reduce continuously. अगर उसी के अंदर ultimately it will थोड़ा कुछ कहीं ना कहीं होगा उसके अंदर, इसलिए कि थोड़ा आपको रहने के. मैं कभी ये नहीं बोलूँगा प्लाईवुड टर्माइट प्रूफ है. सम पीपल आर क्लेमिंग वो, बट ओनली टाइम विल टेल वेदर उसमें केमिकल ये किया वो किया उसके अंदर. मेरे हिसाब से इतना टाइम के हिसाब से कोई प्रूफ नहीं होगा. नहीं होगा बिकॉज यू शुड नॉट मिसगाइड द कस्टमर. इट इज से आई एम डूइंग दिस थिंग. इट इज क्या होता है उसके अंदर, लोग कर दिया 5 साल 6 साल के बाद में कोई बिल भी संभाल के नहीं रखता. किसको बोलेंगे आप उसके अंदर? किसको बोलेंगे? कस्टमर को बोलेंगे यार छोड़ दे यार, वो बोलेंगे मैं नहीं जानता कंपनी से बात करूं. आप क्या लेके जाओगे इसके अंदर? आप गोल्ड खरीदते टाइम अपना बिल आप संभाल के रखते हो? फिर प्लाईवुड का कोई रखेगा उसके अंदर? हाँ, तो आप बोलेंगे नहीं व्हाट इज यू शो मी फ्रॉम वेयर यू आर परचेज. हाँ, मेरे कस्टमर आज बिकॉज माई पर्सन कॉल मी दैट इज ऑलमोस्ट इन 2004 Sirikopa. One customer called. He said, sir, I have come here, it is, I have taken the material. Still he remembers that. Why? He got a good quality material. It is. And this, he called the new house, and my person is, he has even WhatsApp me, it's a beautiful bungalow it is. Sir, I need the thing, but you give me. When you give a proper material, you have to educate the customer. It is. Don't misguide them. It is. So let's get back to the question. This is आपका ये जो बॉक्स वगैरह है, you can make with plywood. Okay, yeah. हाँ, ये एक और है. So now आपका जो वार्डरोब हो गया, वार्डरोब नहीं वार्डरोब का स्ट्रक्चर. Okay. In the sense box you can make. What about the door? डोर. अच्छा, डोर में मैं आपको बताता हूँ. नॉर्मली क्या होता है ना, डोर में अब देखिए एक प्लाईवुड में क्या होता है, द ग्रेन एक इसके अंदर पूरा वर्टिकल ग्रेन है. डोर में क्या होता है, यू आर गोइंग टू फिक्स ओनली ऑन द हिंजेस. इट इज समथिंग लाइक अ फ्री होल्ड. इट इज. प्लाईवुड में क्या नॉर्मली क्या होता है, तो थोड़ा सा ट्विस्ट होने का चांसेस है. हाँ, बॉक्सेस में कोई प्रॉब्लम बिकॉज आपने उसका चारों तरफ से उसको नेल किया हुआ रहता है. सपोर्ट. यहाँ पे क्या होता है ना, यू आर गोइंग टू पुट ओनली हिंजेस. हाँ, इट में प्लाईवुड में इसलिए कि क्योंकि ओवरऑल ग्रेन्स है. दैट में बैंगलोर क्लाइमेट में इतना प्रॉब्लम नहीं आता है. बट स्टिल बेटर टू गो विथ अ ब्लॉक बोर्ड. ब्लॉक बोर्ड में क्या, आई टेल यू, मैं आपको देखिए इसका डिफरेंस आप देखने से आपको पता लगेगा. One is, I told you, veneers, cross structure veneers. This is 19 mm ply. It's a 5 ply construction. It is. Oh. There is a wood. Timber ka blocks hai. I'll give you separately. Then you put a core, put a face. I'll tell you. इसके अंदर भी problem है. What kind of wood you are going to use inside? Okay. The quality of the block board depends. Okay. What kind of wood you are going to use. It is. Suppose if the timber is not limestone, that will start powdering after some time. Oh. Because this is a thicker wood. Metal step 19 mm block board के ऊपर एटलीस्ट जो टिम्बर पोर्शन है, इट विल बी 15 mm थिक. इवन आप उसको किल सीजनिंग तो करता ही है, ट्रीटमेंट करेगा, इट विल नॉट बी थ्रू एंड थ्रू. हाँ, मैं आपको बोला ना इसके अंदर एक विनियर है. दिस इज ओनली 1.8 और 2 mm कोर. इफ यू डिप ऑल्सो केमिकल वो. वेयर इसके अंदर क्या ना, सपोज हार्डवुड, सारे हार्डवुड में प्रॉब्लम नहीं होता. देयर आर सर्टेन वुड दैट इज गोइंग टू गिव यू पाउडरिंग. इसके लिए नॉर्मली क्या होता है, जैसा ये पाइन है, दिस इज नॉर्मली दिस इज न्यूजीलैंड पाइन. इट इज. इंडिया में भी पाइन अवेलेबल है, आप नॉर्थ ईस्ट में है, लाइक नागालैंड, मेघालय, इवन जम्मू, आपको इसमें सारे जगह आपको पाइन मिलेगा. उसके अंदर डिफरेंट कैल, ये डिफरेंट. न्यूजीलैंड एग्रोफॉरेस्ट्री आप आज इंपोर्ट करते हैं, न्यूजीलैंड मेनली इसमें आ जाता है. हाँ, ये जो टिम्बर अगर आप पाइन वुड का एक प्रॉपर्टी है, इट विल नेवर अटैक बाय एनी वुड बोरर. उसके अंदर पाउडर कभी नहीं आएगा. so, आप कौन सा यूज करते हैं? पाइन का. आज मैं आपको बोला था ये भी पाइन है. इसके अंदर पाइन का फ्रेम रहता है. देखिए उसके अंदर ब्लॉकबोर्ड में क्या होता है, दोनों एडजस्टमेंट, सपोज 8x4 थोड़ा थिकर ये टाइप में एक आ जाए आपको ब्राका जैसा फ्रेम में हम लोग दिस काइंड ऑफ यूज होता है, थोड़ा थिकर इसके अंदर. बाद में उसका अरेंजमेंट इसमें इसके अंदर इसके रखे नेक्स्ट साइड में. ये बेंड नहीं होगा? नहीं होगा बिकॉज उसका कंस्ट्रक्शन की वजह से, बिकॉज इसके वजह से. Why can't they use this in normal wardrobe then, like for the structure also? You can use, no problem. Oh, okay. But plywood or blockboard में strength wise, plywood is slightly better. It is. Oh, okay. So because you are going to, like in the structure, it is better. But people are using it. There is no problem. But for the structure, your always recommendation is plywood
Shutters blockboard. For the shutters blockboard, for the structure Plywood it is. Always it is better. It is. Okay, so for now, just to summarize, for a wardrobe, the structure you make using good quality MR grade. Because Bangalore में कोई problem नहीं. हाँ ठीक है. Mangalore है तो you have to think. हाँ there you have to go with it because there is a humidity. हाँ there you have to use waterproof plywood. Because rainy season है 4-5 months at least. जैसा केरला में है, it is going to because it will absorb moisture. थोड़ी देर के बाद में issues आ गए आपको. इसके लिए वहाँ पे climatic conditions का depend आपको use करना. बैंगलोर में कोई issue नहीं है. So you have to take the boiling waterproof for Kerala. हाँ केरला में better, always better it is. Okay. Now लेकिन ऐसा है कि people they don't want to spend much on interior. They have come down it. They said no sir because you laminate it, put a edge banding to a certain extent it can withstand, it can resist. तो वहाँ पे हर जगह हाँ देर आर आ गया मैं पहले क्या था लोग क्या जैसा केरला का बात करते हैं उसके अंदर उसमें देर आर वुड जैसा ये वुड है आप इसको देखिए उसके अंदर आप एकदम डिफरेंट इसके अंदर डिफरेंट आप इसको देखिए दिस ये जस्ट सी द वेट इट्स एक्चुअली अ बिट लाइट वेट कंपेयर टू इसके साथ में कंपेयर कर दीजिए उसके अंदर व्हाट इज द ये भी 19 mm ये हैवी ना डिफरेंट दिस इज मेड ऑफ गर्जन वुड नॉर्मली गर्जन बोले तो मैं आपको बोला था हमारा आसाम में होता था होलोक वैसा आउटसाइड बाहर से जैसा बर्मा है इंडोनेशिया से हैवी ये इसमें ऐसा कि इसका जो टिम्बर है इसका डेंसिटी इज वेरी हाई डेंसिटी वहाँ पे हो जाता है कहाँ पे टिम्बर का ग्रोथ बहुत स्लो टिम्बर जैसा प्लांट बहुत स्लो ग्रोथ होने से उसका डेंसिटी बढ़ जाता है सपोज यूरोपियन कंट्रीज में आप देखिए उसका ग्रोथ इसमें 50 मीटर्स 100 मीटर्स उसमें इतना डेंसिटी नहीं रहेगा लाइक पाइन density is very light. It may be less than 0.5. Correct. Whereas in Garjan, the density because उसके अंदर growth इसके ये timber it will get matured. It will take minimum 25-30 years. तो उसमें वहाँ पे उसके आपसे उसका आप देखें ना उसमें. So इसमें advantage क्या है? Strength is more. इसमें definitely advantage है उसके अंदर उसमें but it's expensive. There are some like 100% Garjan material. That you have to decide whether you want whether it is required or not required. हाँ बैंगलोर में अगर आप बोलो मैं 100% Garjan का I don't think it is required. It is. So there is no need to spend that much. It is. हाँ केरला में will suggest. People also they have now slowly they have started. Why should why 100% Garjan? Why not alternate eucalyptus to reduce the cost? Then they will put some layers of Garjan and this is all like things to just to make it viable. Correct. थोड़ा pricing के हिसाब से वो करने से और plus good quality hardwood में भी जैसा ये उसके अंदर. What's a hardwood? Hardwood means it is density is slightly better, higher. Okay. So like popular का इसका density है less than 0.4, वो बहुत आप light weight दिखेगा. Correct. इसका silver भी थोड़ा उससे है, लेकिन आप teak का देखेंगे तो eucalyptus देखेंगे density is almost 0.7 density. उसका weight भी ज़्यादा रहेगा उसके अंदर. अभी इसके अंदर भी क्या जरूरी नहीं है उसके अंदर आपको 100% गर्जन में. There are hardwood, you have to get it treated, proper treat करके प्रॉपर यूज करने से कुछ भी नहीं होता जैसे मैंने आपको बोला प्रोजेक्ट में लाइक आप टोल्ड यू ना लाइक एयरपोर्ट कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये सब वहाँ पे क्या इंस्टॉल किया था वहाँ पे नहीं फॉर एंटायर थिंग इज यूज्ड फॉर पिलर्स यू कैन दैट वॉल पैनलिंग एवरीथिंग इट इज सारा कुछ उसमें यूज किया उसमें अंदर सारा 100% हार्डवुड यूज किया वहाँ पे कोई गर्जन का यूज नहीं करने की जरूरत नहीं है उसके अंदर हार्डवुड इट शुड बी गिवन प्रॉपर ट्रीटेड seasoning done it is and good quality wood you have to use it timber you have to use it then it will last. Okay, so that's why I mean even after the floods Kerala का कुछ problem नहीं था. So now just to summarize for the wardrobes according to you low humidity areas like Bangalore or MR grade good quality for wardrobe and blockboard for the shutters plywood blockboard with the pine wood filling it is. Okay. Such a pine wood filling it is blockboard it is. And next for coming to high humidity areas like which is in the coastal areas go for and again in Bangalore for kitchen go for waterproof BWP grade. Okay, no, so we'll go for waterproof. Kitchen there is a chance of like come in contact with water. Okay. So kitchen you use BWP grade, not your BWR because we suggest BWR. See, I'll tell you, BWR people diluted like anything it is. See, earlier people use only phenol. Now people then will use melamine only. So it is a diluted product. It is BWR. It is so kitchen better to go with a BWP grade only. It is BWP in kitchen and inside it is MR grade with a good quality MR grade plywood. That is more than enough. I told you when we give guarantee of 7 years or 10 years, that is the time you may think of
like changing your furniture it is. So 10 years if something happen, definitely, because that can last. That is why we are going to give that kind of a this thing. It is. So in simplest way for Bangalore, but what about other areas, humid areas? Depending upon the climatic conditions. Okay. Humid area. So imagine extreme, like very close to the sea, very close. Go for marine grade. That is 710 grade. It is. 710. Bombay, like Bombay. It Very is high quality very marine high grade. marine grade. It better to. You can use. You don't have to go for any Garjan. Good quality hardwood. Marine plywood is more than enough. It is. Marine plywood. Marine normally we use it for the boat, and that is the word has come marine. Oh. See, now people there are so many companies, they say, acha, marine BWR plywood. BWR plywood cannot be marine. It is. That is just to misguide the customer. Acha, BWR marine plywood it is. What is BWR? Too extreme it is. Correct. What is marine? Marine is BWP, that is IS 710 grade it is. Okay. That is as per IS 710 grade it is. That 72 hours boiling water would say that it is. 72 hours boiling. It will last. So you're not going to buy the furniture, but it is showing that So for very high humidity areas, that's what you suggest. BWP And grade. for those also shutters, blockboard itself? Yeah, waterproof blockboard, it comes into waterproof blockboard. Waterproof Even I'll tell you, there is a problem is Kerala. See, okay, 4 months, 5 months it rains. Whereas in temperature, when it go to like summer, the temperature will go up to 40 degree, 42 degree. Correct. So plywood I told you now, because it's when the shutter you're going to put a hinges only. Correct. That may slight twist will be there. You can't blame the plywood company here. And people, they use 16 mm plywood. And one more thing, see, suppose you are using 16 mm, 19 mm plywood, you should not put only one side laminate. Plywood is a balanced construction it is. Correct. When you are putting laminate, see that with the other side also, suppose if 1 mm, you put at least 0.8 mm, laminate it is. Otherwise what will happen? People will have just to cut the cost it is, one side okay. Laminate will have a tendency that will like pull this thing it is. And the back side it may warp. Okay. So there it is in BWP blockboard you will get. Oh, you that get can BWP blockboard. Blockboard as a Kerala, we have started educating the people. Correct. Otherwise, what will happen now? Any good quality plywood you see, I told you because of the shutters, there may be a tendency to warp. Okay. So you go with a blockboard for the BWP blockboard for the thing it is. So coastal areas, high humidity areas, you suggest BWP for not just blockboard, but for plywood also. MR is enough. MR good quality. MR, yeah. That is MR, commercial plywood. People don't know what is MR and commercial. They both are same only, it is commercial. Okay. Earlier commercial means it is very UF bonded. That is totally stopped now. Now it is MUF, that is give a better bonding it is. MEF, it is good quality, is more than enough it is. Let's get into government compliance. So what do I mean by this? Now you were mentioning just a couple of minutes ago the IS 701 and 303. Yes. So क्या है ये Indian standards? No, मैं आपको बोला companies? देखिए ISI इसका है, that is the minimum required standard. कभी कोई product हो उससे भी ये भी हो जाए, better हो सकता है उसके अंदर, like 303. Okay. It should not like that is the MR grade, moisture resistant. ठीक है, अभी ऐसा कि they change the glue, MEF. हाँ, इवन आप पानी में थोड़ा डाल दिया तो भी कुछ नहीं होता उसके अंदर. That is the lowest grade. That is the minimum standard required. IS 303. That is MR grade for commercial plywood. That is MR grade plywood. Okay. Next is BWR. Again, BWR is boiling water resistant. Okay. That is again it is 303. उसके अंदर changes ऐसा है. Okay. It is वहाँ पे वो glue change कर देते हैं उसके अंदर उसमें. Okay. It is IS 303. One is MR, that is moisture resistant. Second is IS 303 BWR, boiling water resistant. Okay. Only timber can be the same. It is उसमें कोई चीज नहीं है. But the glue, आप उसको फिनॉल में कर दिया, फिनॉल यूज करके, फिनॉल फॉर्म है, PF ग्लू यूज करने से BWR आ जाता है. और नेक्स्ट आ जाता है 710. Okay. क्योंकि 710 बोले तो बहुत स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स है उसके अंदर. उसमें नॉर्मली आप कुछ टिम्बर के बारे में कुछ रेस्ट्रिक्शन है, ये टिम्बर नहीं यूज़ करना, वो टिम्बर यूज़ करना नहीं उसके अंदर. क्योंकि 710 नॉर्मली क्या होता है, मरीन इसके लिए जैसा बोट मैन्युफैक्चरिंग का, नहीं तो शिप का इंटीरियर, वहाँ पे घर पे भी ऐसा कि जैसा किचन में, क्योंकि एज गुड एज वहाँ पे पानी आना ही है ना, तो वहाँ पे 710 स्टैंडर्ड उसमें आ जाता है उसके अंदर. उसमें देयर आर 303 ब्लॉकबोर्ड में रहेगा IS 1659, इसके डोर में रहेगा IS 2202. ये सब उसका अलग अलग स्टैंडर्ड्स दिया हुआ उसके. So government has actually very clearly specified कि plywood. Yes, this kind of it should treatment be used, or this kind of this thing like glue should be used to make. There are restrictions. So every company before selling plywood they have to get this, or it's optional? See, there are like it is said, some companies say
look for ISI mark, and in my case that is okay. ISI, it's a mandatory, but that is not the only factor. It is Okay. this thing, that is the minimum standard required. Okay. That is the minimum standard required for that particular product. Okay. There are, suppose if it is you are using MUF, see it is as good as a BWR grade plywood it is. So you are giving something extra. You have to see that it is, and what kind of warranty or guarantee they are going to give it is. Correct. Suppose if it is ISI only, ठीक है, you cut and open, the customer say no, it's commercial, I will not replace. So there is no point in that kind of a this thing it is. The reason I asked this question is No, like I'll tell you, like any branded company, in my this thing operated it is. See, normally like you can't depend upon the local factories because you are not directly in touch with the company. You don't know, say XYZ brand taking through a dealer it is. You don't know which company it is manufactured. Correct. Whereas the branded company, their presence is there in the market. They have an office it is. They can interact, customer can directly interact with them. Correct. And if there is any complaint, dealer says, sir, I bought from this company, this is the company, you talk to, you can talk to them directly. Correct. And if any problem, so like commercial ply means it is, that and suppose if you are cut, if it is open, definitely the company has to replace that material. Correct. Some people they agree, some people they say to carpenter you give them money, sir, Fevicol laga dena, chipka dena, because branded company they don't do that kind of this thing it is. So this kind of the warranty, ISI one thing it is, and again what kind of warranty or guarantee you are going to give to your customers it is. That is also important that it is. Okay. Now, but the reason I asked this question is we had heard a lot of cases as you, I mean even in our previous discussion about counterfeit material and how you take care of all this. So do these counterfeit companies get these ISI mark and all that? No. See, ISI anybody can use, unless and until it is checked by a government agency. Otherwise, you are right, always you are right. No, it is. You are putting it is, people are not bothered it is. They simply use that it is. Because the government, they are also not very strict on like checking, unless and until somebody approach them. They don't look into it. Sometimes they, ISI people, they come and randomly they take samples from the market and do that is there it is, but it is not practical, it is not possible. So what did you do to safeguard your I'll tell you, in plywood, whether it is X companies, Y companies, Z companies, timber is the raw material. Now timber is, everybody using same kind of wood. Correct. Some people they may say I'm creating my veneer will be 1.6. That you can make out. Otherwise normally suppose 1.5 mm or 2 mm, 2.5 mm kind of veneers. Once you make a plywood, suppose it is not stamped, there are certain this thing it is. You can't make out whether it is X companies or Y companies it is. Once you cut, then they can inspect, okay, this kind of timber you use, that can be done. Normal case it is not, as a layman, customer, so you have to think it on a customer's point of view, because they are not educated it is. They have done some R&D, but still they say, okay, plywood this brand is coming, that brand is coming. So counterfeit, that is a serious issue with the plywood it is. And see, every company after making the plywood, it is not that they have to do a stickering, they have to roller. So making a roller is not an issue it is. There are people that they will make you. Sticker, better than this thing you can get from the market it is. Oh. And customer, they don't know whether it is the right one or not it is. So I mean, so we, initially I'll tell you, we have come out with this thing to safeguard, because earlier I told you, I was in Bombay every day, because you don't know the carpenters are also, like they also get some this thing, so they don't tell, then the customer, they don't know what kind of material. So we used to, like, whenever there is suppose some interior work, we just go inside and see. That is a normal practice that whenever there is some new, just randomly this thing it is. And what we had done, I told you, sticker and stamp, कोई भी कुछ भी कर सकता है, तो उसके अंदर आप सिमिलर इसमें हमने क्या किया, हमारा प्लाईवुड में हमने स्टार्टेड, हमने कोई मेनली वाटरप्रूफ प्लाईवुड में, बिकॉज इट्स थोड़ा प्रीमियम क्वालिटी, उसके अंदर भी स्टार्टेड पुटिंग ए स्ट्रिप. ओके. लेकिन इसका क्या इश्यू हुआ उसके अंदर, दिस स्ट्रिप नॉर्मल कोई रेगुलर फैक्ट्री वाला नहीं बना सकता उसके अंदर. यू हैव टू हैव स्लाइसर, स्लाइसर्स के बाद में स्लाइस करके यू हैव टू पुट टुगेदर, देन यू हैव टू कट. ये पॉसिबल नहीं है. लेकिन अभी क्या हुआ, बाहर से बहुत सारा मटेरियल आ रहा है, जैसा रिकॉन टाइप वीनियर, दे जस्ट कट एंड पेस्ट. तो ये इश्यू में भी अपने को प्रॉब्लम आ गया. इसके लिए हमने क्या, एक इश्यू आता है, सपोज देयर आर 3D होलोग्राम्स, लेकिन होलोग्राम इट्स अ वन वे दिस थिंग इट इज. आपने कोई चेक करके भेज दिया, मैंने ये देखा, मैंने होलोग्राम होने के बाद में अगर सपोज से रेगुलर होलोग्राम यू पुट,
कस्टमर वहाँ जाके कस्टमर के पास जाके आपको ये चेक करना पड़ेगा आपका होलोग्राम सही है क्या, इधर देख लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं है बिकॉज देर आर इंडिया में कुछ भी हो सकता है उसके अंदर, देर आर इट इज एनीथिंग यू कैन बी काउंटरफीटेड, इट इज इवन holograms it is, they will give. But we have this thing like somebody approached us, they have a new technology. Like there is a QR code. It is not only hologram. Okay. It is not, it's in a hologram. It is, there is a QR code on each and every hologram. So every sheet which goes has this QR code? This hologram will be there on every product, every sheet. Okay. So this can be, you can, there is this thing, there is an app. Earlier we were using their own app when we have done our own app. So we have a KitPlay app. Okay. This can be downloaded from in any Android and iPhone. Yes, both? iPhone everywhere it is there. It is. Okay. And with that it is you can just scan. There is an app. So हर एक sheet आपका उसके अंदर every product sheet पे any product. Suppose if it is. I mean 1000 sheet है तो 1000 में sheet में आ जाएगा. Every product में आ जाएगा. तो normally के एक app आता है उसमें अंदर KitPlay इसमें आ जाता है. इसके अंदर आप इसको करके आप उसको scan कर सकते हैं उसके अंदर. I'll just show you. And this is actually, and one more thing, it is to tell every customer it is, there is an app that we are working on that. It is so reaching all the customer, whatever the possible you have done, paper advertisement, some messages, everything it is. So most of the people, they don't know. They see, okay, it's a regular hologram, but it's not a regular hologram. There is an app, it is, this can be. Please make sure QR code is in focus and clearly visible on your screen. Oh, wow. So this is scanned. Okay. So one advantage is that it is the customer can see, suppose if it is a wrong scan, the company customer care number will appear on that it is. Oh. Please contact the customer care. And not only customer, हमारे पास message आएगा because in our system you will get a message. This particular customer scanned so and so number of this thing and he has got a wrong scan it is. Immediately. यहाँ पे हाँ यहाँ पे एक्चुअली क्या ना देखिए आज इतना है हर जगह आप पहुँचना पॉसिबल ही नहीं है. देयर आर सो मेनी डीलर्स. हाँ फर्स्ट थिंग इज बाई फ्रॉम ए जेन्युइन डीलर इट इज. सो यू डोंट नो वेदर इट इज अ डीलर और नॉन डीलर इट इज. सो दिस थिंग इट दिस कैन बी चेक्ड इट इज. दिस इज एक्चुअली customer end पे they can verify that it is. Every customer will come it is and then they will scan and in case if they don't have any issue they will contact us. Okay, this is that taken. I have to So when they scan the QR code and if it's correct, that means it's pakka KitPlay. 100%. Because this cannot be duplicated. And this is properly government compliant. Yes, 100%. Full Indian standards के साथ. This cannot be, and one more thing, this hologram cannot be duplicated. So there is no question of any. It's from a very reputed company, and they don't do. They have a US collaboration, and they do that kind of a thing. So they don't do this like kind of see. Otherwise you pay some money, anybody will. Then some people they approach them, so why don't you give us? So they don't give that address. Okay, nice. So this is one way, and because you can reach every customer can verify it at their end. Otherwise somebody go and tell, sir, it's a genuine material. So this has got more authenticity. Correct, fair enough. Okay, nice. So now let's get into the costs. Now one of the common notions in the market which I have felt is I feel that plywood is a lot more expensive to work with, very expensive than particle board and MDF to install. I mean workmanship and all उसमें ज़्यादा लगता है, cutting easily नहीं होता है. So like that's one of the reasons why many people काफी लोग particle board में चले जाते हैं. So I mean उसका like what do you think? You know एक 2 BHK house है समझिए average 1500 1800 square. See एक 2 bedroom में normally क्या ना एक हर रूम में एक कबोर्ड रहेगा उसके अंदर उसमें एक किचन. Drawing room में maybe एक TV, this thing and maybe a shoe, this thing it is off and also get a different issue. I don't think actually if you go with an average good quality plywood it is, I think 2 bedroom easily maybe around 4 to 5 lakhs easily. Including the plywood? Yes, and definitely. Furniture, yes, like yes, carpentry. Bus 4 to 5 lakhs. 5 lakhs easily. I'm talking about 2 bedroom. Suppose you put 1 room extra, there may another cupboard. Correct. This is with a good quality plywood it is. Okay. But okay, particle board में I mean कितना पार्टिकल बोर्ड में देखिए खर्चा तो ऑलमोस्ट इतना ही होता है. वहाँ पे देखिए लाइफ का इश्यू हो जाता है बिकॉज पार्टिकल बोर्ड कंपेयर टू प्लाईवुड इट इज इंफीरियर इट इज. तो कहीं ना कहीं जाके आपको 2-4 साल के बाद में कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ तो चेंज करना पड़ेगा. अल्टीमेटली आप इसी कॉस्ट पे आ जाएगा. अल्टीमेटली आपको बात होता है क्या ना वो डोर्स बार बार उसको ओपन कर देगा वो निकल के हाथ में आ जाएगा. डोर निकल के हाथ में आना कि जहाँ पे आपने हिंजेस डाला वापस वहाँ नहीं आएगा बिकॉज इट विल नॉट पुट दिस इट विल कम आउट.
सो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ तो आपको चेंज करना पड़ेगा। आप एक दो बार आप चेंज करने से आपका ये कॉस्ट में दोनों में कोई फर्क नहीं आएगा। पर लैंडिंग कॉस्ट लाइक नया जाने खरीदते हैं तब कितना डिफरेंस है कॉस्ट में? 5 to 6 लाख अगर प्लाईवुड का लगता है पूरा इंक्लूडिंग फर्नीचर एंड कारपेंटर, हाँ, पार्टिकल बोर्ड में कितना लगता है अंदाज से? पार्टिकल बोर्ड में थोड़ा कम हो सकता है। देखिए मुझे तो नहीं लगता पार्टिकल बोर्ड में कोई, बिकॉज आज कोई कम लेता है उसके अंदर। उसमें अल्टीमेटली अगर इवन इफ 20% 25% कम भी हो जाएगा उसके अंदर, कितना सेविंग करोगे? 1 लाख। 1 लाख से आप कहीं ना कहीं एक दो बार रिपेयरिंग करना पड़े उसके अंदर, उससे ज़्यादा आपको देना पड़ेगा उसको। बात वहीं आ गई ना। तो अल्टीमेटली आप उसको ये करना कि व्हेन यू आर यूजिंग दैट यू डू सम रिस्क काइंड ऑफ रिसर्च। इट इज लाइक टू गेट अ गुड क्वालिटी प्लाईवुड, ट्राई टू गेट अ गुड कारपेंटर, दैट इज ऑल्सो मोर इंपॉर्टेंट। इट इज हाँ, ट्राई टू गेट अ गुड OEM, क्योंकि आपको पता नहीं वहाँ पे क्या यूज करना है। तो आपको बोला अगर OEM के सूत्र पे कारपेंटर कर रहा है, you have to have some supervisor. Don't blindly believe you are like this thing it is okay, they are going to use this thing it is. एक वॉच आपका रखना अच्छा भी रहता है उसके अंदर, when you give some specification. पार्टिकल बोर्ड में आई मीन मॉड्यूलर हो जाता है, मॉड्यूलर फिटिंग्स आ जाती है। इज इट पॉसिबल इन प्लाईवुड आल्सो? बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन मेक फुल्ली मॉड्यूलर। हाँ, शटर्स आप सारा कुछ आज बना सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं उसके अंदर उसमें। ओके ओके। क्योंकि पहले क्या था, एक कंसेप्ट था, नहीं डोर शटर आपको लैमिनेट प्रॉपर MDF में आएगा। आज कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। आज किचन के लिए हम लोग बहुत मेनली लोग यूज करते हैं 16 mm प्लाईवुड। बहुत सारा प्लाईवुड सकर दे डू द लैमिनेशन इट इज एंड दे यूज प्लाईवुड ओनली। आज पार्टिकल बोर्ड देखिए इजी है, बोलता है कॉस्ट इफेक्टिव है, लेकिन अल्टीमेटली आपको बोला ना एक दो बार रिप्लेस करना पड़ेगा, आपका कॉस्ट वहीं आ जाएगा उसके, एंड उसके लिए अलग से टेंशन आपको लेना पड़ेगा। सो बेटर टू गो विद एवरेज क्वालिटी, इज नॉट दैट वेरी बहुत हाई है, क्योंकि ये क्लाइमेटिक कंडीशन में हाँ डिपेंडिंग अपॉन आप यूज करके एवरेज क्वालिटी। हाँ, बाई फ्रॉम ए राइट सोर्स एंड इफ अगर रिएगा तो अगर ठीक है आपको कोई नंबर मिलेगा तो ट्राई टू गेट इन टच विद द कंपनी और ट्राई टू गो टू डीलर इट इज, एंड वहाँ पे अच्छा प्रोडक्ट लेके उसको कर दीजिए उसके अंदर। उसमें आप कोई प्रॉब्लम नहीं उसके अंदर। वो आजकल क्योंकि घर पे कोई बनाना चाहता है, OEM के पास कोई फैक्ट्री में करना, उसमें आपका कारपेंटर कुछ कटिंग सारा कुछ करके खाएंगे। हाँ, एक दो बार दे के उनके सामने आप कटिंग करवा। एक और इशू है व्हिच आई हैव कॉमनली हर्ड, कॉस्ट में ये फैक्टर कंसीडर होता है। आजकल घर 10th फ्लोर 15th फ्लोर 20th फ्लोर में होता है, तो लेबर कॉस्ट पार्टिकल बोर्ड लाइट वेट है इसलिए कम लगता है, प्लाईवुड हेवी है इसलिए। देखिए अल्टीमेटली आपको 10th फ्लोर तो उठा के तो ले जाना, इधर तो आपको सर्विस लिफ्ट है, ये है वो है। हाँ, पार्टिकल बोर्ड ऐसा आइटम है जो बना के आप उसको नहीं, वो भी क्योंकि पैनल बना के वहीं जाके फिक्स करना पड़ेगा। जो कबोर्ड को आप शिफ्ट नहीं कर सकता उसके अंदर, वहाँ जाके वो सारा अलग अलग हो जाएगा उसके अंदर। तो बाकी इतना कोई कुछ नहीं आता उसके अंदर, पर नॉर्मली आई डोंट थिंक इतना डिफरेंस नहीं होगा उसके अंदर। तो बेटर तो आप कम में रहेगा, तो व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग समथिंग टू डू इन अ प्रॉपर वे, लॉन्ग टर्म बेसिस में। क्योंकि एक तो ना पैसा नहीं है उसके अंदर, हर बार उसके लिए आपको टेंशन लेना, अगर कोई वहाँ रहता, अगर किसी को दे दिया इन बिटवीन डेलिकेट यू हैव टू डू द थिंग मेंटेनेंस वर्क, ये सब नहीं होता। इसलिए बेटर टू बी इन when you are doing something on the safer side. And 3 BHK, I mean 1800. Maybe another cupboard will add to it. One bed, yeah. This thing it is that one another maybe 1 lakh rupees that extra that it is. Now, that actually see I'll tell you, this is all like they will, you go to people, they will try to exaggerate. No, I want this kind of this thing. You have to discuss, sir, what kind of metal you are going to use it is. I want, otherwise get the help of the company people. It is, sir, I am going to this thing. It is. Some people they know I'll work only on square feet basis. So there are like issues are there. It is. You have to convince this thing, sir. I want this material. This is the metal you purchase. It is. You give some specification. They will say, no, I'm going to use ISI. What is ISI? It is. I told you that is the minimum required standard for that particular product. That is just minimum requirement. That is a minimum requirement. There are options. It is that can be higher than that also. Okay. So that doesn't make any, because I'm using 7 months. See, I'll tell you, there are people, they just commercial plywood, they just dip and make it waterproof. They say this is BWR, and then they put a big one, 710. So this is all like this thing. When you choose a product, it is, you have to go for a right product. It is correct, branded or maybe reputed company. Plywood का कितना cost होता है एक 2 BHK हाउस में आपके हिसाब से टोटल? Just plywood का cost. प्लाईवुड का कॉस्ट आई थिंक मे बी 5-6 लाख अगर पूरा फर्नीचर का होता है इंक्लूडिंग कारपेंटर। देखिए मेरे हिसाब से होना चाहिए कि 120 शीट्स प्लाईवुड रहना, उसके अंदर सारा थिकनेस आ जाएगा, 6 mm आ जाएगा बैक के लिए, 12 mm क्योंकि कोई ड्रॉवर्स बनाने के लिए, स्ट्रक्चर के लिए 9 mm होना चाहिए मेरे हिसाब से। देखिए एक एवरेज कॉस्ट में आपको बताया, गुड क्वालिटी प्लाईवुड, तो ये हम इसके पड़ेगा, बिकॉज देयर आर अदर कॉम्पिटिटर्स दे चार्ज like good quality with a warranty material. It is, see, per square feet you will come around anything between to 72 to 75 rupees per square feet. It is including GST. Including GST, 72 to 75 rupees per square feet. That is a warranted material. It is. Okay. Anything? How many years warranty? This is 7 years we are giving it. There are other things it will give more than all that.
So how much? 70 to 75 per square feet. Per square feet. And That is one including sheet is how GST. much? 32 square feet. 32 square feet. No, normally what happens it is you don't have to everywhere, you don't have to 8x4 because your cupboard size is 7x. Why you want to use 8x4 and waste that material? Correct. So wherever it is 7x4, go with the 7x4. Okay. And especially in cupboards, 7x4 is advisable it is. And there are one more issue like in high rise building is up 7x4 like lifting the material also. 8x4 may not be fit into the service lift. Correct. So 7x4 and that is only required. Suppose there is a loft, you can use that separate metal 7x4 for the thing. Loft will be separate. Otherwise 8x4 से 1 feet में loft नहीं होता उसके अंदर. It will be wastage. So ये करके तो it will be approximately around 70 मतलब 2,200-300 rupees. Correct. So even if you buy maybe around 40-50 sheets of 19 mm plywood, then 12 mm will cost you around not less than around 55 rupees, 55 to 60 rupees per square feet. Maybe around 5-6. 2 lakhs में आराम से आपका plywood इसमें आ जाएगा. Maybe inside laminates also, maybe another, see inside putting laminates. So we have even liner laminates also we have. We give. Laminate. Yes. And you have laminated plywood? Plywood, see normally what happens it is we can give that is mainly white. You don't know the choice of the customer. Na? See like different colors. Basic for the structure, it is both side laminated, white color plywood. That anyway, that we are giving it is, but we are not pushing it like anything. It is, this is carpenter, let their choice it is. So laminate also, that will cost maybe around, you may require around 60-65 liner. That will cost you around, maybe anything around 450 rupees per square feet. So that is around 30,000 rupees for the laminate. Overall, I think it is 2 lakh plus only it will come in. And labor charges, and even if I don't know what is the kind of charges. That's fine. That's so 5 lakhs mein pura yes, laminate and what then the accessories that depends. See, if you that want kind depends. of a like luxurious type, then that means But that will be expensive in particle board also. that is everything the same thing only. Na? It is. Yeah. Only the basic structure you are going to change it is. Correct. Other accessories, everything will be the same only. It is. Okay, fair enough. So if a plywood cost of a house is 2.5 lakhs, particle board or MDF, how much would it be? There will almost say you can say 18 mm plywood particle board will cost laminated maybe around 35 to 40 lakhs. And lamination is also, that is not the kind of lamination you are going to do. That is only paper based, very thin micro thickness lamination it is. Okay. So see that is I told. 1.5 lakhs में particle board मिल जाता है. तो basically एक 6 to 8 lakh project में बंदा 50,000. अगर basic cost में अगर आप 50,000 नहीं तो 1 lakh save कर रहे particle board MDU use करके, I don't think that is worth. Okay. So you go for a good quality plywood, and when the company stands guarantee that okay, if anything happens for 7 years or 10 years, we will stand guarantee for this particular, because we use kind of a different kind of 10 years. Okay, that is our the thing it is. Anything company, we'll give them the replacement, everything, whatever it is. It is not only replacement. Sometimes you have to see it's not the plywood, no, because some kind of okay, whatever the basic furnish that we have to. Oh, so when you give warranty, it's not just for the plywood but also for the basic. Definitely furniture. you have to give it is. Oh, wow. It is not that plywood laminate will come. It is so you have to limit along with the laminate it will come out, na. Okay. So again that is a thing it is. So because we use quality material, so we don't have any issue in giving that. This is problem. Like basically, just to approximately ask you, अगर 100 houses use your plywood, कितने complaints आते हैं 100? या 1,000 houses use your plywood? Why should the customer buy kit ply? It is there are n number of brands. Yeah. They can go with that. Na? When So you no give questions asked, delamination हुआ तो delamination, you keep it aside. We will replace that. Only thing is that they have to either they can talk to us directly, but we'll ask which dealer you have to buy. He has to say, okay, I'll send the material to that site. It is. Now there is no problem. When we go there, if the hologram is there, it is. Yeah. Will no question asked it. Whether you are taken from which dealer it is. QR code आ गया. QR code, everything is that. We will verify it is our genuine material. There is no question of a dealer in between. We'll do that. It is. Oh wow. Okay. So customer, it is, I told you, customer, they can, because I get a lot of calls, it is every day, the kind of carpenters they call, they saying, so sir, how to scan this thing, because most of the all over India, like sometimes the cost will be somewhere in JNK, I'll get a call, sometimes it will be from Calcutta or Guwahati, Okay. so or in extreme south, Trivandrum. Because now the customers are aware that it is, there is a, this thing, method to identify that this thing it is, and they get a service also. Okay. Great. So now that we've covered cost,
That's about it, I guess. So, anything, parting words to tell to any new homeowner, what they should keep in mind? Sir, I'll tell you, as a company, I told you, I'm working with this company last 31 years because I handle many customers. It is. When a customer say, I used your KitPly, I have an issue. I don't think twice it is. We have to address their customer, it is. So, we are a responsible company. If any issues are there, it is when you are using our product, it is. Not today. Tomorrow. I told you now, people are like, today I got a call that the customer has used in Sirikope 15 years back. He has come to Bangalore. Now he has considered new house. He said, I want the metal, but you give me good rate. That is okay. Definitely we can give that. It is. Correct. So any issue is there by using our plywood. Okay. Because as a responsible company, we will take the responsibility and definitely will give a genuine product. Because I know the pain of a customer. It is. I told you now, I may construct in my lifetime once or twice I will do a interior work. Maybe your sons or daughters, you are going to help them. That is a different issue. Oh, you're this thing, it is. So you always think that you are giving a genuine product to a customer at a genuine price. It is. The KitPly I can make sure. And that is about KitPly. And what about, some parting words in the sense of any precautions any new homeowner should take? Like what they should keep in mind? Some see, go to a genuine dealer, buy a genuine product. It is. That's all it is. And get a genuine carpenter or genuine factory fellow. See, I'll tell you, plywood, what will happen? He will say, I'll use BWP grade. See, they're going to laminate it both sides. They're going to put edge binding. You have no option to come to know whether what kind of material they used it is. So, always go to people it is with sometimes reliable people so that you don't have to worry about that it is. When that I can guarantee by using KitPly, there are one more issue I'll tell you. See, like, we don't suggest customers to go for, there are products, we told you, commercial product, where they expect a lifespan of 4 to 5 years it is. Definitely, they expect a cheaper quality plywood. We have cheaper quality plywood also. But in that, we will not say that this is guaranteed, that is guaranteed. That is, we'll leave to the customer. Sir, you are using a cheaper quality material. So you have to understand that it is, we have to compromise some material. This thing, always go with a warranty material it is. And because, like projects it is, you tell them, sir, you use BWP, they're going to use it. But they take work at a very competitive price. Correct. And they're like expecting that one. There will not be an issue, but still, there is. You can't give a warranty. आप सील नहीं डाल सकते. Yeah, नहीं, इसमें नहीं डाल सकते और इसमें क्योंकि उसमें देखिए टिम्बर ग्लू है दोनों. ग्लू में तो आप BWR तो ये यूज करना पड़े. BWP, टिम्बर में आप कॉम्प्रोमाइज करेगा उसके अंदर. यूज डिफरेंट काइंड ऑफ वुड वेयर द कॉस्ट इज लेस to reduce the cost of the plywood. So, kabhi bhi aisa ki there are options. It is carpenters will say it is KitPly. There are KitPly manufactured different kind of. Even we have like fire retardant plywood. I don't say any interior work. You use my fire retardant plywood. There is a purpose where it has to be used. Then again like film face plywood. This is for the construction of this thing, and then checkered plywood. This is for construction of what? This is for this thing, like you beams and all that, pillar. Wow. This will give you a smooth finish. Okay. And this is 100% phenol bonded material. It is Wow. densified material. You can see the density of the sheet also you can say. Yeah, Normal nice. plywood will be approximately 12 mm will be around 24-25 kg. Whereas this will be like this 30. And if you densify more, it will be 34, 36 different. So repetition will be. What is this? This is checkered floorboard for buses. Oh, you can use plywood for buses. Buses. That plus flooring, you can see that this thing, flooring it is. Okay. Like there are aluminum checkered floor, but the issue is that it is, our road condition is like that. After that nuts, bolts will, they will give a lot of sound. Whereas in this thing, it is, this is wooden, it will not make any this thing. Or climatic conditions, suppose if it is Rajasthan mein hai, aluminum checkered floor will give heat. तो यहाँ पे के टिम्बर का है, it will absorb this thing. बहुत है, doors है, वहाँ पे every product we have like this for decorative, this for this thing it is. So basically, what you're telling customers is know what you're looking for. Yes, you have to have a proper study on what kind of material you use because you have to constructing house, you are going to stay there it is, and you expect a life for your furniture it is. So spend some time, do some R&D. Talk to the company people. We are there to help them with this. See, automatically our sale is handled by the dealer. So we are out where people it is. You talk to them, talk to us it is. We will guide them it is. Correct. Because we are in between, they will get a proper price and they will get a true material, and the dealer also know that it is okay. The company people are this thing it is. So they can rely on us it is. Great. Thanks a lot for doing this, sir. Thank you, Nikhil. No, this is a like, I'm not here sitting to sell KitPly. This is a like basic
ideas the customer should know whether they use Kitply. There are brands. It is. I'm not saying that Kitply. There are other brands also. Let them go with the other brand. I'm not. Correct. But they should Just check these things. check these things. It is when they're buying the this thing, material. It is. Correct. Great. So do check out kitply.com, kitply.com. It's one of the oldest manufacturers of plywood in India. Thanks a lot for doing this. It was great learning from someone who has 31 years of experience in one industry. Absolutely amazing. Thanks a lot, sir. Thank you, Nikhil. Thank you for giving me a chance to reaching to the customers. It is. If anything is there, let them talk to me anytime. I will put the Put them. I'll even if you want to mention my number also, you mention it is. Sure. I'm there, always there to help them out. It is. Whether they buy it or not, that is a secondary issue. If they want any questions, anything regarding kind of material, any doubt about that, we can So I help have them. the contact details in the description. Don't forget to check it out. And if you're interested in buying plywood, I would highly recommend Kitply. Thanks a lot. See you guys in the next video. Thank you. Thanks a lot.